Okay, guys, last day that is we actually stopped over here. So we will continue from here onwards. So there are will be the certain questions which is मतलब reasoning based ही है और हमें वहाँ पे डिसइंटीग्रेट नहीं हो पाता है कि कौन सा रीजनिंग है कौन सा मैथ्स है तो हम लोग उसी तरह के फॉलो करेंगे दैट इज द वे वी फाइंड आउट द थिंग्स तो फर्स्ट एक थोड़ा सा क्वेश्चंस देखते हैं जैसा ये वाला है मतलब रीजनिंग बोलिए पजल बोलिए व्हाट एवर यू वांट टू से अबाउट दिस whatever that is question is the given if you see the question is given there are the 8 bags of the rice looking alike 7 of which have the equal weight and one is the slightly heavier the weighing balance is of the unlimited capacity using this balance the minimum number of that we have to find out that is the minimum number of the weighings required to identify the heavier bag. Okay? Now, अब क्या होता है कि मोस्टली यू विल फाइंड आउट दे विल यूज द वर्ड एज द मिनिमम इसको पजल भी बोल सकते हैं रीजनिंग भी बोल सकते हैं दैट इज मोस्टली दे विल गिव यू द वर्ड एज द मिनिमम दैट इज यू हैव टू यूज द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स और वेइंग बैलेंस है तो जनरली जब हम लोग यूज करते थे दैट इज अर्लियर वी यूज टू गेट दैट इज द वेइंग बैलेंस मतलब एक तरफ कॉमोडिटी होता था और एक तरफ दैट इज वेट होता था तो दिस इज गिवन इज द वेइंग बैलेंस using this balance the minimum number of the wings required to identify the heavier bag now अब क्या है दैट इज जनरली स्टूडेंट्स इस पे क्या करते हैं दैट दे टेक इट 8 bags है it is given is the 8 bags so in this 8 bags they take 4 bags on one side and 4 bags on the other side so wo that is the that approach is a very common approach taking 4 bags on one side and 4 bags on the other side that is a very common approach but हमें ये सीखना है कि as far as the UPSC is concerned that is how we should find out the things so what we did that is these are the 8 bags we have these are the 8 bags we have clear they are all looking alike but it is given that is 7 of which have the equal weight and one is the slightly heavier the weighing balance is of the unlimited capacity meaning is that is you can put as many bags as possible in one side or that minimum we have to find out now instead of taking that is the instead of taking four bags what we will take we will find out in this way that is we will divide ये जो 8 बैग है 8 बैग को इस हिसाब से डिवाइड कर लिया that is 6 bags and 2 bags and why that is the 6 bags or 2 bags हम लोग find out किया that is the important thing why we have taken 6 bags and 2 bags तो आइडिया ओवर हियर व्हेन इट इज 6 bags इज देयर तो इसमें से एक ही हैवियर है तो हम लोग ने क्या किया वेइंग बैलेंस को यूज किया और वेइंग बैलेंस को यूज करते हुए सपोज दिस इज द वेइंग बैलेंस तो वेइंग बैलेंस को यूज करते हुए 3 बैग एक तरफ रख दिया और 3 बैग दूसरे तरफ रख दैट इज वी कीप दैट इज द 3 bags ऑन वन साइड एंड 3 bags ऑन द अदर साइड यूजिंग द वेइंग बैलेंस अब क्या होगा अगर वेइंग बैलेंस शोज द इक्वल दो केस हो सकता है या तो केस एक हो जाएगा दैट इज इट विल शो यू एज द इक्वल और सेकंड केस इट विल शो you as the unequal only two cases are the possible that is either it will show you the equal or it will show you as the unequal अब क्या है अगर इक्वल है that is अगर ये इक्वल है that is once we are weighing over here यहाँ पे एक बार वे किया दैट इज 3 bags लेके तो अगर ये इक्वल हुआ इफ द बैग्स आर द इक्वल मतलब तीन इस 6 में से 3 बैग एक तरफ रख लिया और 3 बैग एक तरफ रख लिया अगर ये इक्वल हुआ तो अनइक्वल ऑब्वियसली इस दोनों बैग में से कोई एक होगा दैट इज द अनइक्वल विल लाई बिटवीन दैट इज ईदर ऑफ द 2 bags तो उस पे क्या करेंगे जब ईदर ऑफ द 2 bags हो जाएगा तो उस पे से फिर एक बार बैलेंस को यूज कर लेंगे हम लोग
एक बैग एक तरफ रख लिया, एक बैग एक तरफ रख लिया, तो उस केस पे क्या हो जाएगा, दैट इज विच एवर विल दैट इज द वे मोर, विच एवर विच विल वे मोर, तो वो क्या हो जाएगा, इट विल शो यू दैट इज द हेवियर बैग। तो इस हिसाब से अगर इक्वल आया तो वी कैन सी दैट इज वी आर गेटिंग, if it is equal, that is we can see we are using the operation, the minimum operation as the twice. Now agar unequal आया, for example if it is unequal, idea is the unequal, हो सक equal आया तो ठीक है, तो unequal आया तो क्या होगा वो भी देखना होगा। if it is unequal then what will happen, तो अगर unequal आया तो the possibility is out of these three bags, that is, if it is unequal, then the possibility is that is out of these three bags, one of the bag is the heavier bag. मतलब इस अगर अनइक्वल आया तो इस दोनों बैग जो एक तरफ राइट हैंड साइड पे है, उस दोनों बैग पे क्या है, दैट इज दे आर इक्वल। बेसिकली इस दोनों में से हेवियर नहीं है, हेवियर बैग किस पे है, दैट इज इन तीनों बैग में से कोई एक हेवियर बैग, दिस इज द मीनिंग। तो इन दोनों में से कोई एक हेवियर बैग है, तो इसका मतलब अगर बैलेंस को यूज करेंगे तो बैलेंस को यूज करते हुए कोई भी दो बैग ले लेंगे, दैट इज एनी टू बैग्स आउट ऑफ द थ्री बैग्स। तो हम लोग एनी टू बैग्स आउट ऑफ द थ्री बैग्स ले लिया। तो व्हेन वी कंसीडर एनी टू बैग्स आउट ऑफ द थ्री बैग्स, तो अगर वो इक्वल आया तो ऑब्वियसली थर्ड बैग जो है वो हो जाएगा हेवियर बैग। अगर इन दोनों में से कोई भी अनइक्वल है तो जो ज्यादा टिल्ट करेगा वो हो जाएगा हेवियर बैग। तो इस पे भी हम लोग को देखा जाए, अगर अनइक्वल है तो एक बार तो यहाँ पे वे किया और एक बार दूसरा बार यहाँ पे वे किया। तो एनी केस दैट इज whether it is the case comes out to be equal or the case comes out to be the unequal, we have the minimum number of the weighing operation done is the 2 times. तो आंसर हो जाएगा 2 टाइम्स। ओनली दैट इज द चेंज इज देयर। अगर देखा जाए कि यह चेंज क्या है, जो कॉमन अप्रोच होता है स्टूडेंट का, टेकिंग फोर बैग्स इंस्टेड ऑफ टेकिंग फोर बैग्स, वी हैव डिवाइडेड दिस 8 बैग्स इनटू टू पार्ट्स, दैट इज 6 बैग्स एंड 2 बैग्स। तो ये एक अप्रोच वाली बात है, दैट इट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी। तो इस अप्रोच के कारण ही दैट इज वी शुड वी आर कंसिडरिंग दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है। दिस इज द यूपीएससी क्वेश्चन। तो यूपीएससी का क्वेश्चन में क्या दे रखा है, देयर आर द 10 आइडेंटिकल कॉइन्स एंड ईच वन ऑफ देम हैज द एच एनग्रेव्ड ऑन इट्स वन फेस एंड द टी एनग्रेव्ड ऑन इट्स अदर फेस। तो इस तरह का क्वेश्चन दैट इज द यूपीएससी हैव आस्क्ड ट्वाइस टू अस। These 10 coins are lying on a table and each one of them has the H face as the upper face. In one attempt, exactly 4, neither more nor less, coins can be turned upside down. What is the minimum total number of the attempts in which T faces all the 10 coins can be brought to the upper face? Clear? तो एक बार यूपीएससी ने क्या किया, इस पे जैसा 10 दे रखा है, द इट इज गिवन एज द 10 आइडेंटिकल कॉइन्स, तो इट इज आल्सो गिवन इन वन ऑफ द क्वेश्चन, इट वाज गिवन एज द 6 आइडेंटिकल कॉइन्स। तो they change the question thing, number it can be changed but the process remains the same. तो क्या हो जाएगा, there are the 10 identical coins and each one of them has the H engraved on its one face and T on its upper। तो H identical coins लिख देते हैं। सबसे important part है, that is in one attempt exactly 4 we have to consider, neither more nor less। so we will take in this way H So these are the things we have taken, that is the 8 coins, and जो सबसे important है लिखा हुआ है exactly 4, neither more nor less, coins can be turned upside down। मतलब आप that is 4 से कम भी नहीं ले सकते, 4 से ज़्यादा भी नहीं ले सकते, that is the most important thing। Now what is the, again इसी पे इस word पे भी देखा जाए तो again the word is the given as the minimum। Again the word is the given as the minimum। So what is the minimum? That is the total number of the attempts in which T faces all the 10 coins, that is in which T faces all of the 10 coins can be brought to the upper face। Now you can try once,
that is I have explained you the fact. So generally student क्या करेंगे, that is we will do the same thing, we will take any four, not necessarily कि हमें पहला चार लेना है व लास्ट चार ले, we can start from anywhere, it is not any hard and fast rule. तो अगर फर्स्ट चार ले लिया, मान लेते हैं, तो हम लोग क्या किया जाए, टेल 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 टेल, तो एक बार तो ये हो गया, इनिशियल फेज तो ये है, बाकी सारे एज इट इज है, बाकी सारे कॉइन्स एज इट इज है, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, दैट इज अब यहाँ पे दैट इज द नेक्स्ट स्टेप, इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। जनरली व्हाट वी डू, हम लोग ये करने की कोशिश करते हैं कि बाकी के जो है, जो हेड हेड है उस पे से चार को पिक कर लेते हैं। तो यही पे स्टेप पे दैट इज द इम्पोर्टेंट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। वैसा करेंगे तो ये होती ही जाएगा चीजें, तो मिनिमम होगा नहीं। तो नेक्स्ट स्टेप इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। तो व्हाट वी विल कंसीडर, कैसे कंसीडर करेंगे, हम लोग ऐसे ले लेंगे, एक टेल और तीन हेड, ठीक है, कोई भी एक टेल ले लेंगे और तीन, कोई भी तीन हेड ले लेंगे। तो बाकी नेक्स्ट स्टेप पे ऐसा रहेगा क्योंकि हमें चार ही मिलेगा। दिस इज द केस इट कम्स आउट, ठीक है। उसके बाद तो हमें दिख ही रहा है कि कौन सा हेड बच रहा है, ये एक हेड बच रहा है और एक तीन हेड ये बच रहा है। तो वी कैन फाइंड आउट, दैट इज इफ वी हैव टू राइट आउट द टेल, तो वी फाइंड आउट द टेल, टेल टेल टेल, देन टेल 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 टेल। तो दिस इज द गिव्स यू, दैट इज हमें देखा जाए तो इफ वी कैन सी वी आर गेटिंग एग्जैक्टली थ्री। So 3 should be the answer. Exactly in 3 attempts, that is the minimum number of the attempts when we are discussing. So we are getting that is the exactly 3 attempts to find out the things. Okay, moving to the next question. ये भी UPSC का ही question है. ये भी UPSC का ही question है. A box contains 5 sets of the balls, while 3 balls in each set. Each set of the ball each set of the balls has one color which is different from other set. What is the least number of the balls that must be removed from the box in order to claim with certainty, it is said, that a pair of the balls of the same color has been removed. So obviously इस question को जब UPSC have asked in the form of the blindfolded way. It is not that when you are picking the balls you can see the color of the balls. It is not in that way. So a box contains 5 set of the balls. हर एक with 3 balls है in each set. Each set of the balls has one color which is different from every other set. मतलब 5 कलर टोटल हो गया. तो टोटल हमारा कितना हो गया, 15 बॉल हो जाएगा. टोटल बॉक्स में 15 बॉल हो जाएगा. हर एक कलर का 3-3 बॉल हो जाएगा. व्हाट इज द लीस्ट, अगेन फिर से हम लोग को अगर देखा जाए तो द वर्ड दैट इज गिवन इज द लीस्ट नंबर. तो व्हाट इज द लीस्ट नंबर, मतलब मिनिमम की बात करें किया हुआ है, तो ऑब्वियसली दे विल ऑलवेज यूज द वर्ड एज द मिनिमम. So what is the least number of the balls that must be removed from the box in order to claim with certainty that the pair of the balls of the same color has been removed? So अगर हम लोग इस तरह से 15 बॉल ले लिया, मान लेते 3 रेड का आ गया, 3 इस कलर के आ गया, तीन इस कलर, तो टोटल एक बॉक्स है. टोटल अगर एक देखा जाए, तो एक बॉक्स है, तो इस बॉक्स में एक्चुअली वी हैव 15 बॉल्स. तो ये 5 कलर के हो गया, हर कलर दैट इज हर कलर के 3-3 बॉल्स हो गए. तो हमें कितना बॉल रिमूव करना होगा, obvious again I am telling you, that is they have asked you the question based on the blindfolded to claim with certainty that is a pair of the balls of the same color has been
removed. Pair of the same color balls has been removed. तो ये क्या हो जाएगा, that is when we will pick the balls, तो बिना देख के, जैसा हमें बिना देख के उठाना है, तो चांसेस आर देयर, सर्टेनिटी होगा कि नहीं हमें नहीं पता. द चांसेस, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द चांसेस, चांसेस इज देयर कि पहला दो बॉल में, दैट इज वी गेट द सेम कलर बॉल. फर्स्ट टू बॉल को पिक किया और हमारे पास क्या आ गया, दैट इज द सेम कलर. लेकिन वो हो गया चांस, इट इज नॉट अबाउट द सर्टेनिटी. तो व्हेन वी टॉक अबाउट द सर्टेनिटी, तो हमें क्या हो जाएगा, दैट इज हमें वर्स्ट कंडीशन को सोचना होगा थोड़ा सा. वर्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगा, दैट इज हर एक कलर की एक एक बॉल आ चुका है. तो हर एक कलर की एक एक बॉल अगर आ चुका है, तो वी विल हैव 5 बॉल्स ऑब्वियसली. हर एक कलर की अगर एक एक बॉल आ चुका है, तो वी विल हैव द 5 बॉल्स. अब क्या होगा, जब 5 बॉल्स आ चुका है और 5 बॉल्स वी आर, दिस इज द वर्स्ट कंडीशन वी आर कंसिडरिंग. वर्स्ट कंडीशन में कंसिडरिंग में क्या हो जाएगा, दैट इज हो सकता है फर्स्ट 2 बॉल्स पे ही आ जाए कलर, सेम कलर का. हो सकता है पहला फर्स्ट 3 बॉल्स पे आ जाए. बट दोज आर ऑल चांसेस वी आर टॉकिंग अबाउट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सर्टेनिटी. तो 5 बॉल का जो वर्स्ट सिचुएशन हो सकता है, तो फर्स्ट 5 बॉल्स पे ये हो जाएगा कि हर एक एक कलर का बॉल आ चुका है. फिर जो 6th बॉल आएगा, जो भी 6th बॉल आएगा, whatever the 6th ball comes out to be, whatever the 6th ball comes out to be, so in that 6th ball, obviously that is the color has to repeat, has to मतलब with certainty. तो मिनिमम और हमें विथ सर्टेनिटी चाहिए, ये जो चीजें बोला है, दैट इज द लीस्ट नंबर एंड विथ सर्टेनिटी. तो हमारे पास कितना हो जाएगा, दैट इज द 6 बॉल्स हो जाएगा. क्लियर? Okay, moving to the next question. It is a very good question given. The next one. तो इस पे दे रखा है, देयर आर द 10 कॉइन मेकिंग मशीन्स. 9 of them produce coin of the 10 gram each, while the 10th machine produce the coins of the 11 gram weight. Nine of them produce the coin of the 10 gram each, while the 10th machine produce the coin of the 11 gram weight. If a person having a spring balance instrument reading in grams, how many minimum, इससे वही word दे रखा है, that is the minimum, how many minimum number of the readings are required to determine which machine produce the heavier coins. Okay. You can take out as many coins as possible from each machine. So the instrument that is given is the spring balance instrument. The instrument that is given is the spring balance instrument. Okay. तो स्प्रिंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट सभी ने देखा होगा. स्प्रिंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट पे क्या होता है, दैट इज एक हुक होता है नीचे, उस पे वेट लगाया जाता है और जो उसकी रीडिंग्स होता है, रीडिंग साइड पे आ जाता है कितना, मतलब ये स्प्रिंग बैलेंस दे रखा है, विच इज द स्प्रिंग बैलेंस, इट इज इन द गिवन इन द ग्राम्स, इट इज गिवन इन द ग्राम्स एक्चुअली. तो दैट इज ऑल टुगेदर इज अ डिफरेंट थिंग. अदरवाइज दैट इज द स्प्रिंग बैलेंस इंस्ट्रूमेंट कम्स आउट इन द केजी फॉर्म, है ना. तो मिनिमम कितना होगा, द आइडिया इज दैट इज द मिनिमम, हाउ मेनी, दैट इज द मिनिमम रीडिंग्स आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द थिंग्स वी हैव टू फाइंड आउट. तो हमने क्या किया, दैट इज लेट अस टेक आउट द मशीन्स 1 2. Now, the other thing also it is said, that is you can take out as many coins as possible from each machines. You can take out, that is the, you can take out as many coins as possible from each of the machines. तो उस भी कोई limitations नहीं है, the number to take out the number of the coins, that you don't have any the limitations. तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे इस केस पे, क्योंकि हमें मिनिमम नंबर ऑफ द टाइम्स वी हैव टू use the spring balance instrument. So in that case, what we will do, we will take, that is from the first machine we will take out 1 coin, from the second machine we will take out the 2 coins, from the third we will take out 3 coins. ऐसा करते 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 जब तक 10th मशीन तक जाएंगे, तो वी विल टेक आउट द 10 coins. तो जैसे जैसे मशीन का नंबरिंग कर दिया, द वे वी हैव डन द नंबरिंग ऑफ द मशीन्स, उसी फॉर्मेट पे हम लोगों ने क्या किया, नंबर ऑफ द कॉइन्स वी हैव टेकन.
From the first machine we have taken out the 1 coin, from the second machine we have taken out the 2 coins, from the third 3, ऐसे करते करते the fourth machine से 4 coin, fifth machine से 5 coin, sixth से 6, 7, 8, 9, फिर the 10th machine से 10 coins. Now what happens कि अगर consider करते, if we consider the case that all the machines are the correct, if we consider the case that is the all the machines are the correct, so what will happen, obviously the correct weight हो जाएगा 550 grams. करेक्ट जो वेट आ जाएगा दैट विल कम आउट टू बी द 550 ग्राम्स. लेकिन इस पे क्या हो जाएगा, दैट इज वन ऑफ द मशीन इज द इनकरेक्ट मशीन, one of the machine is the incorrect machine, and that incorrect machine actually that is the 10th machine which produce the 11 gram weight. तो obviously वो क्या show करेगा, it will not show you 550 grams, है ना, it will not show you 550 grams. वो क्या show करेगा, that is more than 550 grams. It will show you more than 550 grams. तो अगर ये more than 550 grams आया तो कोई भी weight ले लेते, that is more than 550, but वो 560 के ऊपर भी नहीं जाएगा. So for example, that is it comes out to be 556 grams. Suppose जो spring balance है, the spring balance shows you the 556 grams. तो जैसे ही 556 ग्राम शो किया तो उसका मतलब क्लियर इंडिकेट क्या हो जाएगा, दैट इज क्लियर इंडिकेशंस हो जाएगा. अच्छा, ये तो क्लियर हो गया ना कि हम लोगों ने स्प्रिंग बैलेंस को, सारा कॉइन्स को स्प्रिंग बैलेंस के नीचे वेट की तरफ रखा और वो 550 ग्राम 6 ग्राम शो कर रहा. तो हम लोग अभी तक जो स्प्रिंग बैलेंस को यूज किया, दैट इज वी हैव यूज्ड द स्प्रिंग बैलेंस ओनली वंस, है ना, एक ही बार यूज किया. तो 556 ग्राम्स आया. अगर 556 ग्राम्स आया तो क्लियरली इट विल इंडिकेट कि द सिक्स्थ मशीन इज द इनकरेक्ट मशीन और द सिक्स्थ मशीन इज द डिफॉल्ट मशीन. क्यों ना, जो 6 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है, एक्चुअली आना चाहिए, अगर करेक्ट है तो क्या आना चाहिए, 550 आना चाहिए, लेकिन क्या आ रहा है, 6 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है, दैट इज 556 आ रहा है. तो ये जो 6 ग्राम एक्स्ट्रा आ रहा है, 6 ग्राम एक्स्ट्रा आने का मतलब ये हो गया, दैट इज द पॉइंट इज दिस कि जिस जिस भी मशीन से हमें 6 कॉइन्स मिला था, उसी के कारण, दैट इज जिस भी मशीन से हमें दैट इज द 6 कॉइन्स मिला था, उसी के कारण हमें 6 ग्राम्स एक्स्ट्रा हो रहा है, क्योंकि उसी मशीन से 1-1 ग्राम सब एक्स्ट्रा आया होगा, तभी 6 ग्राम एक्स्ट्रा मिल रहा था. दैट्स व्हाई वी कैन से दैट इज द फ्रॉम दिस वेट 556 ग्राम्स का वेट से हम लोग बोल सकते हैं कि द सिक्स्थ मशीन इज द इनकरेक्ट. तो इस प्रकार से देखा जाए, इफ यू लुक एट इन दिस वे, तो द स्प्रिंग बैलेंस दैट इज यूज्ड इज ओनली वंस. हमें अगर ये देखा जाए तो स्प्रिंग बैलेंस कितना बार यूज किया गया, तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि स्प्रिंग बैलेंस को हम लोग ने एक ही बार यूज किया. ठीक है, तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. और सबसे इंपॉर्टेंट है जो लास्ट स्टेप है, यू कैन टेक आउट एज मेनी, ये इंडिकेशन कर रहा है कि आपको मिनिमम कैसे यूज कर सकते हैं हम लोग. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये दे रखा है यूजिंग ओनली 2, 5, 10, 25 एंड 50 पैसा कॉइन्स. 2, 5, 10, 25 and 50 paisa coins, what will be the minimum number of the coins required to pay? 78 paisa, 69 paisa, rupee 101 to the 3 different person. Now, हमें फिर से वर्ड वही दे रखा है, दैट इज द मिनिमम. हमें कितना, दैट इज द मिनिमम नंबर ऑफ द कॉइन्स रिक्वायर्ड टू पे 78 पैसा, 69 पैसा एंड रूपी 101. Obviously, there is no limitations to the number of the coins. You can use as many coins as possible. As far as the number of the coins are there, there is no limitation. But हमें क्या करना, हमें मिनिमम चाहिए, तो ऑब्वियसली हमें ये देखना होगा कि वी आर यूजिंग द मिनिमम नंबर ऑफ द कॉइन्स. तो क्या हो जाएगा, इफ इट इज 78 पैसा है, तो 78 पैसे को कैसे हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं, 50 हो गया, है ना, फिर 10 हो गया, फिर 10 हो गया, फिर हमें 70 तक हो गया, फिर 2 + 2 + 2 + 2, तो हमें क्या हो गया, 78 हो गया. तो वी आर एक्चुअली यूजिंग 7 कॉइन्स, इफ यू सी.
वी आर एक्चुअली यूजिंग द 7 कॉइन्स फॉर द 78 पैसा. तो ये हो गया, दैट इज दिस इज द केस फॉर द मिनिमम. अगर 69 पैसा है, इफ इट इज 69 पैसा, तो 50 प्लस 10 60 हो गया, है ना, प्लस 5 दैट इज 65. So we are using that is the 5 coins if you see. Okay. Next we have that is the rupee 101. 101 का मतलब 101 पैसा into 100 कर दिया, तो that will come out to be 101 पैसा. 101 पैसे के लिए कितना हो जाएगा, that is 50 plus 25, that is 75 plus 10 plus 10. तो ये कहाँ हो गया 95. 95 और मुझे और 6 चाहिए, plus 2 and plus 2. So again we are using the 7 coins. ठीक है. तो टोटल दैट इज जो भी हम लोग अभी तक समेशन फाइंड आउट किया, टोटल वॉट एवर इज द समेशन वी हैव फाउंड आउट, तो वी कैन सी दैट इज टोटल वी आर गेटिंग एज द 19 कॉइन्स. तो दैट मीन्स द आंसर शुड बी माई 19. Okay? Now next question is based on the UPSC. Next question, it is based on the UPSC. Suppose you have the sufficient amount of the rupee currency in the three denomination. You have the rupee 1, rupee 10 and rupees 50. In how many different ways can you pay the bill of 107? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सिमिलर है बट स्लाइट चेंज है ना, slight change है. तो suppose you have a sufficient amount of the rupee currency in the three denomination, that is rupees 1, rupees 10, rupees 50. In how many different ways can you pay the bill of 107? तो इस पे क्या है, दैट इज डिनोमिनेशंस ये है, यू कैन यूज द, अगेन वही बात है कि डिनोमिनेशंस कितना भी टाइम्स वी कैन यूज इट, द पार्ट देयर इज नो लिमिटेशंस, दैट इज हाउ मेनी टाइम्स वी कैन टेक द डिनोमिनेशन. तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है, फर्स्ट केस पे 50 एक भी नहीं लिया. सेकेंड केस ये हो सकता है कि 50 का एक डिनोमिनेशन लिया, और थर्ड केस ये हो सकता है कि 50 का दो डिनोमिनेशन. तो यही केस हो सकता है हमारा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू द 50 वी ट्राई टू फाइंड आउट. तो ये हो सकता है कि 50 पहला ये हो गया कि 50 का एक भी डिनोमिनेशन नहीं आया, सेकंड में हो गया 50 का एक आ गया, थर्ड पे ये हो गया 50 का दो आ गया. नाउ अगर 50 का एक भी नहीं है, अगर 107 तक ले जाना है, तो इट इज ओनली पॉसिबल 10 का 10 है प्लस एक का 7 है, ये हो गया. तो इट गिव्स मी 107. नाउ द आइडिया इज कि 10 का 10 लेना जरूरी नहीं है, 10 का 9 भी ले सकते हैं. तो मतलब केसेस किस तरह से केसेस चेंज होते जाएगा, इस चीज को समझिए. ये तो एक भी अगर जब 50 नहीं लिया, तो तब मुझे 107 पहुंचने के लिए एक केस ऐसा हो गया, एक केस ये क्या हो गया, दैट इज 10 का 10 हो गया और एक का डिनोमिनेशन 7 हो गया. ठीक है, तो 107 हो गया. जस्ट टू गिव यू द आइडिया, दूसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि 10 का हमने 9 ले लिया, बाकी जो हमारा बचा दैट इज 17, वो हम लोग एक का ले लिया. तो ऐसे करते करते हम लोग ने सारा केसेस बना सकते हैं. तो फिर हम लोग अगला केस ऐसा बना सकते हैं कि 10 का 8 हो गया, ऐसा केसेस बना सकते हैं कि 10 का 8 हो गया, और फिर हो जाएगा बाकी जो बचेगा सारा एक एक ले लिया. तो बार बार ये करने का जरूरत नहीं है, हमें इससे पता चल जाएगा, दैट इज फ्रॉम दिस वी कैन कम टू नो, है ना, फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन कम टू नो कि ऐसा करते करते 10 केसेस तो आएगा ही आएगा, कि पहले 10 का 10 लिया, फिर बाकी सब एक एक का ले लिया, फिर 10 का 9 ले लिया, बाकी सब एक एक का ले लिया, फिर हम लोग का तीसरा केस आ जाएगा 10 का 8 हो जाएगा, बाकी सारे एक एक का ले लिया. ऐसा करते फिर 10 का 7 ले लिया, मतलब 10 डिनोमिनेशन का 7 ले लिया, बाकी जितना बच गया सारा एक एक ले लिया. ऐसे करते करते हमें ये तो पता चल गया 10 केसेस आ जाए, जैसे जैसे 10 को कम करते हुए. लेकिन एक केस ऐसा आएगा, एक केस ऐसा भी आएगा कि एक भी 10 लेने का जरूरत नहीं पड़ेगा, तो उस पर सारे ही 1 1 आ जाएगा. तो फर्स्ट केस पे हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास 11 केसेस आ जाएगा. फर्स्ट केस के लिए हम लोग ये लिख सकते हैं कि हमारे पास 11 केसेस आ जाएगा. ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज हाउ वी आर फाइंडिंग आउट कि एक्चुअल कैलकुलेशंस करने का जरूरत नहीं है, कैसे दैट इज द 11 केसेस वी आर गेटिंग द पार्ट.
फिर क्या हो जाएगा दूसरा केस पे, इफ वी आर फाइंडिंग आउट फॉर द सेकंड केस पे क्या हो जाएगा, 10 का 5 हो जाएगा प्लस जो बचा 50 का एक आ चुका है ऑलरेडी, इसका मतलब सेकंड केस जो ले रहे 50 का एक आ चुका है, बाकी जो हो जाएगा 10 का 5 हो जाएगा, बाकी 1 का 1 का 7 हो जाएगा। तो ऐसा करते करते फिर 5 केसेस आ जाएगा। 5 केसेस कौन सा आएगा, फिर दूसरा केस आ जाएगा 10 का 4, बाकी सारे ही हमें एक एक का ले लिया। फिर तीसरा केस ये आ जाएगा 10 का 3 आ जाएगा, फिर बाकी सारे एक एक ले लिया। लेकिन लास्ट वाला जो एक केस आएगा कि 50 का एक आ जाएगा और बाकी सारे 1 1 1 1 आ जाएगा। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे पास इस पे 6 केसेस बनेगा। इस हिसाब से हमारे इस पे 6 केसेस बनेगा। क्लियर? और इस पे क्या हो जाएगा, दैट इज इफ यू लुक एट दिस पार्ट कि 50 का 2 आ जाएगा। 50 का अगर 2 आ जाएगा तो एक ही केस बन सकता है 1 का 7, तो इन दिस केस वी विल गेट ओनली 1 केस। ठीक है? तो टोटल हमारा अगर देखा जाए कितना सारा डिफरेंट वेज बन रहा है, तो टोटल डिफरेंट वेज जो बन रहा है दैट इज द 18 डिफरेंट वेज बन रहा है। तो ये यूपीएससी ने पूछा हुआ है, लेकिन अगर देखा जाए तो दिस इज व्हाट वी से अबाउट द रीजनिंग व पजल है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है। Next question is the given. Suppose n is an integer such that the sum of the digits of the n is the 2. क्या हो जाएगा? That is n is an integer and sum of the digits of the n is 2. Uh, n lies between 10 raised to power of 10 and 10 raised to power of 11. The number of the different values of n is, मतलब कितने सारे values of n हो जाएगा। वही similar type of the question है। That is the previous it was asked in the UPSC. So the concept is the same over here. Clear? The concept is the same over here. तो हमारा क्या हो जाएगा, that is if we find out the case, 10 raised to power of 10 का मतलब क्या हो जाएगा, 1 के बाद 10 जीरो। तो एक 10 जीरोस का प्लेसेस हो गया। अब क्या हो सकता है हमारा सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द एन, मतलब डिजिट्स जो होगा, टोटल समेशन ऑफ द डिजिट्स ऑफ द एन क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। तो पहला केस ऐसा हो सकता है हमारा, द फर्स्ट केस इट कैन बी 1 ओवर हियर, और बाकी सारे प्लेसेस पे 0 हो जाए। बाकी सारे प्लेसेस पे जैसे 0 हो गया तो कंडीशन सैटिस्फाइड हो गया कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द एन 2 हो गया, और ये वाला कंडीशन भी सैटिस्फाइड हो गया कि इट इज मोर देन 10 रेज़ टू पावर ऑफ 10 एंड लेस देन 10 रेज़ टू पावर ऑफ, ठीक है, दैट इज द 11। अब क्या हो सकता है दूसरा केस, ये तो पहला केस हो गया। सिमिलरली वैसे दूसरा केस को अगर बनाया जाए तो दूसरा केस पे ये 1 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, बाकी सारे केसेस पे दैट इज 0 0 हो गया। बाकी सारे केसेस पे 0 0 हो गया। अब ऐसा करते करते दैट इज इफ यू टॉक अबाउट द तीसरा केस पे यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, बाकी सारे केसेस पे दैट इज द 0 0 हो गया है। ऐसा करते करते दैट इज द 1 एक्चुअली शिफ्ट हो रहा है। देखा जाए तो 1 इज एक्चुअली शिफ्टिंग। तो 1 कितना पोजीशन में शिफ्ट होगा, एक्चुअली 10 प्लेसेस है तो 10 पोजीशन में तो शिफ्ट होगा ही होगा। फ्रॉम द राइट हैंड साइड इफ वी सी, फ्रॉम द राइट हैंड साइड इफ वी सी, तो इट इज शिफ्टिंग फ्रॉम द, दैट इज द 1 1 1 इन दिस वे। तो फ्रॉम द राइट हैंड साइड से वो कितना प्लेसेस शिफ्ट करेगा, दैट इज द 10 प्लेसेस वो शिफ्ट कर जाएगा। तो 10 प्लेसेस जैसे ही वो शिफ्ट कर गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 10 नंबर तो मिल ही जाएगा। 10 नंबर तो मिल ही जाएगा, लेकिन इसमें से 2 ऑप्शन है, दैट इज 10 तो है ही, लेकिन एक चीज हम लोग एज अ स्टूडेंट देखा जाए तो मिस कर जाते हैं। दैट इज एज अ स्टूडेंट वी मिस वन ऑफ द थिंग्स। वो क्या हो जाता है, दैट इज ऐसा करते करते 10 नंबर मिल गया, आखिरी के जो नंबर होगा ये भी पॉसिबल है। आखिरी के नंबर जो है ये भी पॉसिबल है, और ये सारा कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट द सम ऑफ द डिजिट्स 2 होना चाहिए, और n की वैल्यू जो है इट रेंजेस बिटवीन 10 रेज़ टू पावर ऑफ 10 एंड 10 रेज़ टू पावर ऑफ 11। तो इसलिए इंस्टेड ऑफ द 10 केसेस इट विल हैव द 11 केसेस। तो जो प्रीवियस क्वेश्चन है उसी का ही, दैट इज द वे, दैट इज द दिस क्वेश्चन इज आस्क्ड।
ये भी that is it was asked in the UPSC. It was asked in the UPSC. क्या क्वेश्चन क्या है, और इस तरह का क्वेश्चन दैट इज इफ यू सी, है ना, ऐसा मतलब लॉजिक को क्लब किया हुआ है कि इस पे हमारा थोड़ा बहुत ऑलरेडी वी नो कैलेंडर का दो ही कॉन्सेप्ट होता है, या तो वो लीप ईयर होता है या तो ऑर्डिनरी ईयर होता है. If it is ordinary year, you have the 365 days. If it is a leap year, you have 366 days. है ना? तो ये देखिए, अगर इस क्वेश्चन को दिस वाज आस्क्ड, द प्राइस ऑफ द दार्जिलिंग टी इन रुपीस पर किलोग्राम इज 100 प्लस 0.1 एन ऑन द nth डे ऑफ 2007. एक चीज ध्यान रखिएगा, 2007 वाज एन ऑर्डिनरी ईयर, मतलब 2007 में इट वाज अ 365 डेज, इट वाज हैविंग 365 डेज. और n की वैल्यू है जो है दैट इज, अगर देखा जाए कि दार्जिलिंग टी की बात करें, दैट इज 100 प्लस 0.1 n. लेकिन n जो है, n still extends till 100, मतलब it doesn't increases throughout the year, it increases till the 100th day, it increases till the 100th day and remains constant. मतलब 100th day के बाद it remains the constant. मतलब क्या हो जाएगा, जो 100th day का प्राइस है, जो 100th डे का प्राइस है, the same price is applicable on the 101th day, or the same price is applicable on the 102 days or 300 days, it's the same thing. On the other hand, the price of the UT, that is the tea, in rupees per kilogram is 89 plus 0.5 n on the nth day of the 2007. But yet throughout the year it is increasing. You can see that is 365, है ना? तो क्योंकि 2007 was an ordinary year and it has increased throughout the year, so 1 plus 2 365 it is given. So on which date of 2007 will be the prices of the two varieties be equal, two varieties of tea be equal. ठीक है, ये फाइंड आउट करें. तो अगर ये देखा जाए कि हमें जैसा ये तो 100 डे तक इंक्रीज कर रहा है, ये OTT का है, ये 100 डे के लिए इंक्रीज कर रहा है. इफ इट इज इंक्रीजिंग टिल 100 डे, तो 100 प्लस 0.1 इंटू 100, तो हमारा जो प्राइस हो गया दैट इज 110 रुपीज हो गया. अब अगर ये वाला प्राइस, दूसरा वाला जो OTT का प्राइस अगर 110 से इंक्रीज कर गया, मतलब 100 अगर 100 पुट करके अगर 110 से ज़्यादा हो गया, तो ऑब्वियसली वो नंबर ऑफ डेज जो होगा इक्वल जो होगा वो लेस देन द 100 डेज हो जाएगा. लेकिन अगर देखा जाए, इफ वी पुट n की वैल्यू 100 अगर पुट किया हम लोगों ने, इफ वी पुट द वैल्यू ऑफ n एज द 100, दैट इज 18 प्लस 15 हो जाएगा, तो ये 104 हो गया. तो 104 मतलब ये प्राइस जो है, प्राइस इक्वल हुआ है, दैट इज आफ्टर द 100 डेज, 100 डेज के ऊपर जाके वो इक्वल हो रहा है. तो दैट इज, इस कैलकुलेशंस के लिए हमें वहाँ पे कोई कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं होगा, क्योंकि हमें ये देखते ही पता चल रहा है कि इफ यू पुट 100 इन द फर्स्ट केस तो 110 आ रहा है, इफ यू पुट 100 इन द सेकंड केस तो इट इज कमिंग आउट टू बी 104, इज कमिंग आउट टू बी 104. तो 104 है, तो अब फर्स्ट का जो प्राइस है दैट इज दार्जिलिंग टी का जो प्राइस है वो तो कांस्टेंट हो जाएगा, जो बढ़ेगा तो OTT का ही प्राइस बढ़ेगा ना. तो हमें इक्वेट करके देखना है कब ये 110 हो सकता है. दैट इज वी हैव टू सी दिस केस, दैट इज वी हैव टू सी दिस केस व्हेन इट इज कमिंग आउट टू बी और 110. हमें ये देखना है, क्योंकि फर्स्ट का प्राइस तो कांस्टेंट हो जाएगा उसके बाद, और सेकंड का ही ओनली इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग. तो ये अगर फाइंड आउट करना है हमें, दैट इज इफ यू हैव टू फाइंड आउट, तो वी कैन फाइंड आउट इन दिस वे. 0.15 n इज इक्वल्स टू माई 21. तो n कितना हो जाएगा, 21 बाई 0.15. तो इसको अगर हटा दिया तो इंटू 100 हो गया. तो इसको अगर फाइंड आउट करेंगे तो दैट गिव्स मी 5 का 3 हो गया, 23 का 7 हो गया. That is in 140 days. This is the only one step of the calculation is there. If you see, this is the only one step of the calculation is there. That is on 140th day.
On the 140th day, the two prices of the tea will be equal. That is the Darjeeling tea and the Ooty tea. इन दोनों की prices equal हो जाए. तो ये कब इक्वल हो जाएगा? अगर हमें वी हैव टू फाइंड अकॉर्डिंग टू द डेज, हमें अकॉर्डिंग टू द डे फाइंड आउट करना है. तो जनवरी 31 हो गया, है ना. फेब्रुअरी क्योंकि ऑर्डिनरी ईयर है तो 28 हो गया. मार्च 31 हो गया. अप्रैल 30 हो गया. मई 20 हो गया. तो 140, तो मई 20th पे both the prices will be the was equal. तो ये देखो, दैट इज इतना, द लॉजिक सेज दैट इट इज क्लब विद द कैलेंडर along with the simple calculation of the bar. Simple calculation. Now, it was also asked in the UPSC. ये UPSC का ही क्वेश्चन है. It was asked in the UPSC. 12 people from a club by picking lots. By picking lots, one of them will host a dinner for all, one in a month. The number of the dinners a particular member has to host in 1 year. तो कितना, that is in this type of the question, कोई ऐसा तो that is there is no calculations, nothing is there. So it is given 12 people from a club by picking lots. One of them will host a dinner for all, one in a month. The number of the dinners a particular member has to host in 1 year. Now, the idea is कि picking lots का मतलब क्या है? That is, it is a lottery system. If we talk about the picking lots meaning is it is a lottery system. So it is a lottery system, मतलब ये भी हो सकता है कि सारे के सारे that is only one person is holding all the dinner. ये भी हो सकता है कि सभी ने एक एक किया, हो सकता है दो ने सब ने होल्ड किया, दैट इज 6 इसने 6 उसने. तो जब लॉटरी सिस्टम होता है, we cannot predict anything, that is exactly कि prediction से we cannot say exactly कि सभी को एक एक बार चांस मिलेगा व किसी को चांस मिलेगा कि नहीं मिलेगा. those things we are not clear with. so obviously therefore the answer comes out to be cannot be predicted. तो देखा जाए तो यूपीएससी हैव आस्क्ड सच अ सिंपल क्वेश्चन, जस्ट वी हैव टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज. अगर लैंग्वेज को ठीक से समझ में आ जाए तो वहां पे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा टू फाइंड आउट द आंसर टू दिस टाइप ऑफ द क्वेश्चन. नाउ ये दे रखा है, दैट इज द, it is given in a tournament of the chess having 150 entrants, a player is eliminated whenever he loses a match. Whenever he loses a match, it is given that no match results in a tie or a draw, means the same thing. How many matches are played in the entire tournament? मतलब ये देखा जाए तो it was asked actually, यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, लेकिन the important thing is that कि it is a knockout match. Means once you lose, you are out of a player is eliminated whenever he loses a match. So it is given that no match results in a tie or a draw. How many matches are played in the entire tournament? Yeah. So कितना हो सकता है? That is accordingly if you have to find out. तो इसका इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए, दैट इज द फिगर इज गिवन 150, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट फॉर द 150. We cannot find out for the 150. Whenever this type of the figure comes, what we can do, we can always, that is, simulate the part. We can always simulate the part and find out the things. So simulation, that is, if we have to simulate the part and find out the things, so you can take any number. For example, instead of taking 150 entrants, we can take any 5 entrants. That is 5 participants, A, B, C, D, E. हमें ये ध्यान रखना होगा, a player is eliminated whenever he loses a match, meaning is that is it is a knockout match. A player is eliminated whenever he loses a match, meaning is it is a knockout match, means once you lose you are out of the tournament. तो हमें क्या करना होगा, दैट इज वी कैन प्ले द मैच इन दिस वे. पहले ए बी ने खेला, फिर सी डी ने खेला और ई ने सपोज बाय मिल गया. सपोज दीज आर द थिंग्स. तो ए बी के बीच पे ए जीता, सी डी के
बीच पे डी जीता और ई को मान लेते बाई मिल गया। अब मान लेते दैट इज डी और ई खेला तो ई सपोज जीत गया और यहाँ पे ए को बाई मिल गया, और ए और ई खेला तो सपोज मान लेते ए जीता। तो हमें अगर देखा जाए तो हाउ मेनी टाइम्स द मैचेस आर द प्लेड, तो मैच प्लेड के एक यहाँ पे, दैट इज एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया, एक यहाँ पे हो गया। इफ यू हैव टू फाइंड आउट द विनर, तो हमें देखा जाए तो 4 मैचेस हो। तो जब 5 player here, that is the 5 people are there or the 5 entrants are there. To find out the winner of the match, we have to play. We have to for the knockout game, we have to conduct, that is the 4 matches. So similarly, when we have the 150 entrants, to find out, that is the by the process of the simulation, we need to find out, that is the 149 matches. So when it is 149 matches are the played, so always we can find out the knockout, that in the knockout game how many matches should be conducted to find out the winner of that match. Okay, next question. ये भी यूपीएससी का ही है। ये भी यूपीएससी का है। okay? तो ये दे रखा है A has some coins, he gives half of the coins and 2 more to the B. B gives half of the coins and 2 more to the C. C gives half of the coins and 2 more to the D. Now the number of the, that is the number of the coins D has now is the number of the coins D has now is the smallest 2-digit number. How many coins does A have in the beginning? So, the important thing over here, D has the, it is given in the question that D has the smallest, that is the 2-digit number, which is we can, that is the 10. D के पास 10 है. Now, instead of solving the question in the traditional format, what we can do, that is always we can find out the question with the help of the options. कोई भी ऑप्शन से स्टार्ट कर सकते हैं, है ना? How many coins A have in the beginning? तो you can take any. For example, हम लोग अगर 60 से स्टार्ट किया, तो A के पास 60 है, तो B को इसने क्या हो जाएगा, B के पास 30 + 2 हो जाएगा, दैट इज 32 हो जाएगा। तो C के पास कितना हो जाएगा, 16 + 2 हो जाएगा, दैट गिव्स मी हाउ मच, 18। और D के पास प्लस कितना हो जाएगा, 9 + 2 विच इज इक्वल्स टू 11। तो ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली वी कैन नॉट टेक द 60, ठीक है। सिमिलरली वी कम आउट टू बी द, इफ वी कम आउट टू द 52, अगर A के पास मान लेते 52 है, तो B के पास कितना हो जाएगा, दैट इज 26 + 2, 28 हो जाएगा। C के पास कितना हो जाएगा, 14 + 2, तो ये कितना हो जाएगा, 16। तो D के पास कितना हो जाएगा, 8 + 2, दैट इज द 10। कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है, तो आंसर शुड बी 52। तो इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग आउट इन द ट्रेडिशनल फॉर्मेट, और ये कैलकुलेशंस कोई डिफिकल्ट नहीं है, दैट इज यू कैन टेक एनी फिगर एंड यू कैन फाइंड आउट। ये तो मैंने लिख के किया। यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट विद द वर्बली ऑल्सो, दैट इज वर्बली फाइंड आउट हो जाएगा चीजें, इस पे कोई ज्यादा कैलकुलेशन करने का जरूरत नहीं। क्लियर? नाउ मूविंग टू द मोस्ट पार्ट, दैट इज द, इसी की अगर रीजनिंग के बात चले, जैसे ये वाला क्वेश्चन देखा जाए, ठीक है, ये सारी मतलब ऐसा होता है कि हमें ये नहीं पता चलता वहां पे कि पजल्स है, रीजनिंग है। तो एवरीथिंग एक्चुअली द एंटायर पेपर इज अ रीजनिंग बेस्ड पेपर, देखा जाए तो इट इज द एंटायर पेपर ऑफ द पेपर 2, दैट पेपर 2 इज अ रीजनिंग बेस्ड। हमें क्या होना चाहिए, वी हैव सैग्रीगेटेड बट एवरीथिंग इज अ इंटरलिंक्ड पार्ट,
everything is the interlinked part. तो अब ये दे दिया that is x, y, z are the natural numbers such that x is less than y less than z, and 2 raised to power of x plus 2 raised to power of y plus 2 raised to power of z equal to 112. Then the value of, you have to find out the value of x plus y plus z. You have to find out the value of x plus y plus z. So what should be the value of x plus y plus z? क्या वैल्यू हो जाएगा, आप लोग कोई बताओ। तो ये हो जाएगा, दैट इज हमें ये दिखाई दे रहा है अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन कि z ज़्यादा होना चाहिए। और कोई कैलकुलेशंस तो एज इट इज़ है नहीं, क्योंकि हमें रीजनिंग के थ्रू ही सॉल्व करना है चीज़ों को। वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द रीजनिंग। तो ये है 2 रेज़ टू पावर ऑफ x प्लस 2 रेज़ टू पावर ऑफ y प्लस 2 रेज़ टू पावर ऑफ z हो गया 112। ये हो गया। तो z की जो वैल्यू है, तो z की जो वैल्यू है, z की वैल्यू क्या होना चाहिए वो देखते हैं। मान लेते हैं कि हमें जो z का वैल्यू ले लेते हैं 5 फॉर एग्जांपल, जस्ट टू गेट द आइडिया, है ना। z का वैल्यू ले लेते हैं 5। अगर z का वैल्यू 5 है तो मतलब 2 रेज़ टू पावर ऑफ, ये तो सारे 2 रेज़ टू पावर ऑफ z है, ये 2 रेज़ टू पावर ऑफ y है, 2 रेज़ टू पावर ऑफ x है। तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ z जो है दैट इज द, ये कितना हो जाएगा, दैट इज इट विल कम आउट टू बी अ 32। तो अगर मान के चलो 2 रेज़ टू पावर ऑफ z व्हिच इज 32, तो 2 रेज़ टू पावर ऑफ y एंड 2 रेज़ टू पावर ऑफ x, वो दोनों वैल्यू 32 से कम होगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन दैट इज x शुड बी लेस देन y शुड बी लेस देन z। तो अकॉर्डिंग टू दिस कंडीशन, तो वो जो y और x की जो वैल्यू होगा वो दोनों कम हो जाएगा। अगर वो दोनों कम हो जाएगा तो व्हाट वी कैन डू, दैट इज वी कैन नॉट टेक एज द 32, बिकॉज 32 के अगर नीचे चला गया तो कभी 112 तक पहुंच ही नहीं पाएगा। अगर दूसरा केस ये लेते हैं, मतलब ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं है, दैट इज दिस केस इज नॉट पॉसिबल, z का वैल्यू 5। तो दूसरा वाला, इफ वी टेक द सेकंड केस, if we take the second case, if we take the value of z as the 7, if we take the value of the z as the 7, तो value of the z जैसे 7 लेंगे तो it will come out to be how much, 128, है ना। तो 128 हो जाएगा, तो it is actually that is above the, it is 120, it is above the equation of 112, तो वो भी नहीं होगा, that is, तो ये भी नहीं हो सकता, the second, this is also not possible। तो ओनली वन पॉसिबिलिटी कम्स ओवर हियर कि z की वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज द 6 होना चाहिए। दैट इज वन पॉसिबिलिटी कम, z का वैल्यू 6 होना चाहिए। तो ये अगर 64 होगा तो वी कैन टेक दैट इज y का वैल्यू 5 होनी चाहिए। तो 64 प्लस 32, और तो x की वैल्यू क्या होना चाहिए, दैट इज द 4। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा। 2 raised to power of 4 plus 2 raised to power of 5 plus 2 raised to power of 6 will give you as the 112। जैसे कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगा तो the answer should come out to be your 50। ना ये एक एडिशन का प्रॉब्लम दे रखा है, दैट इज दिस वाज गिवन इन द यूपीएससी, दिस वाज गिवन इन द यूपीएससी, द एडिशन का प्रॉब्लम का जो क्वेश्चन है। Here consider the following addition problem: pp plus 4p plus pp plus pp is equals to rq2, where p, q, r are the different digits. What is the arithmetic mean of all such possible sums? So you can find out the case कि कैसे हो जाएगा ये चीज। Can always find out the case। तो हमें अगर देखा जाए सिंपल एडिशन है, ये सिंपल एडिशन है। तो 4 पी को ऐड करके, 4 बार पी को ऐड करके दैट इज हमें 2 लाना है, लेकिन यहाँ पे बोला है कि एक नंबर नहीं होगा। अरिथमेटिक मीन ऑफ ऑल सच पॉसिबल सम्स बोला है। That is when the question is asked in this way, that is the arithmetic mean of all such possible sums. So it indicate that is only one
that is the value will not be there. It will have more than one value. So what is the arithmetic mean of all such possible sums? So p का वैल्यू या तो क्योंकि दैट इज 4 बार है 4p है, ये देखा जाए तो ऐसा क्या है 4p करने से, हमें ये देखना 4p करने से ऐसा क्या है जो हमारा दैट इज 4 इंटू पी एक्चुअली, दैट इज 4 इंटू पी करने से यूनिट डिजिट 2 आ जाए, तो या तो p की वैल्यू 3 हो जाए या तो p की वैल्यू 8 हो जाए। 8 4 जा 32 होता है एंड 4 इंटू 3 दैट इज द 12 होता है। तो ये दो केसेस आ जाएगा, तो हम लोग उसी हिसाब से दैट इज द दो फिगर्स, दो नंबर्स बन जाएंगे। तो ये सिंपली दे आर गिविंग यू दी मल्टीपल्स। अगर देखा जाए तो द क्वेश्चन का मतलब क्या है, द क्वेश्चन का मतलब ये है कि वी हैव टू सिंपली फाइंड आउट द मल्टीपल्स ऑफ द थ्री, है ना। तो मल्टीपल्स ऑफ द थ्री अगर फाइंड आउट करेंगे तो वी कैन ऑलवेज फाइंड आउट इन दिस वे, दैट इज 3 3, है ना, 4 3, एक नंबर हो जाएगा, एक नंबर ये हो जाएगा, फिर 3 8 4 8, ये दूसरा नंबर हो जाएगा। तो इन दोनों नंबर को फाइंड आउट करके वी हैव टू फाइंड आउट द अरिथमेटिक मीन। तो ये सिंपल सा चीज़ है, सिंपल कैलकुलेशन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है कैलकुलेशन वाइज देखा जाए तो। तो इवन इफ यू फाइंड आउट, यहाँ पे 2 आ जाएगा, 9 10, ये 14 142, यहाँ पे 2 आ जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 3 3 6, तो 10, 26 हो रहा है, सॉरी 26 हो रहा है। तो इन दोनों को देखते हुए हम लोगों को पता चल रहा है कि हमें ज़्यादा कैलकुलेशन करने का ज़रूरत नहीं, यूनिट इन दोनों की एवरेज तो फाइंड आउट होगा ही। तो इफ़ वी फाइंड आउट द एवरेज तो ये आ जाएगा 202। तब देखते मतलब 102 होगा या तो 202 होगा। तो 102 हो नहीं सकता क्योंकि इट इज़ मोर देन 200 पे वो जा रहा है, तो इट विल कम आउट टू बी अ 202। नाउ next question is this, we can find out the, it was also asked in the UPSC. ये यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, दैट इज कंसिडर द फॉलोइंग। अब लास्ट क्वेश्चन हम लोग क्या किया था, द लास्ट क्वेश्चन वी हैव फाउंड आउट विद द एडिशन प्रॉब्लम। now in this question we are finding out the multiplication problem, so they are asking you about the simple multiplications, okay, they are asking about the simple multiplications, that is pq into 3 is equals to, given is the rqqq, where pqr are different digits and r is not equal to 0, what is the value of p plus r divided by q? ठीक है, तो सिंपल मल्टीप्लाई अगर करेंगे पी क्यू इंटू 3 डिवाइडेड बाई दैट इज आर क्यू क्यू, है ना। तो यहाँ पे जो भी नंबर आएगा क्यू का वो नंबर यहाँ पे आना चाहिए। जैसा बात तो हो रहा है 3 की मल्टीपल्स का ही बात हो रहा है, तो लोग दैट इज दे आर टॉकिंग अबाउट 3 का मल्टीपल, ठीक है। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो 3 की मल्टीपल्स पे 3 1 3, तो यहाँ पे 3 आ रहा, क्यू की वैल्यू 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 आते ही यहाँ पे 3 आ जाएगा, जबकि यहाँ पे 1 आना। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 देखा जाए 2 नहीं हो सकता है, सिर्फ सिमिलरली 3 इंटू 3 नहीं हो सकता है क्योंकि q की वैल्यू अगर 3 होगा तो यहाँ पे q की वैल्यू 9 आ जाएगा, यहाँ पे अगर 3 रखेंगे तो यहाँ पे 9 आ जाएगा, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो एक ही चांस हो सकता है कि 3 की वैल्यू q की वैल्यू 5 आ जाए, तो यूनिट डिजिट दैट इज द 15 आ जाएगा, वो कैरी ओवर 1 हो सकता है। तो q की वैल्यू मतलब एक पॉसिबिलिटी है कि 5 आ जाए, तो यहाँ पे 5 आ जाएगा, 15 कैरी ओवर 1।
अब हमें देखना होगा कि p की वैल्यू ऐसा क्या पुट करे 3 की मल्टीपल्स पे और कैरी 1 करके फिर वहां पे 5 आ जाए। तो एक ही पॉसिबिलिटी फिर 7 पे नहीं हो सकता है, 6 7 नहीं हो सकता है, 8 पे हो सकता है। 3 इंटू 8 इज द 24, 24 प्लस कैरी ओवर जो 1 है वो हो सकता है 25। तो p की वैल्यू क्या हो सकता है, q की वैल्यू हो सकता है 8। तो हमारा इस तरह से क्वेश्चन क्या होगा सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाइज 85। तो हमारा क्या हो गया सिंपल मल्टीप्लिकेशन वाइज दैट इज 85 into 3, that it comes out to be a 255. Clear? Now it is said that is p plus r. p कितना है 8, r कितना है 2 divided by q। तो हमारा 2 आंसर आ गया। तो यू कैन सी दैट इज हाउ यूपीएससी आस्क यू द क्वेश्चन। ठीक है, हाउ यूपीएससी आस्क यू द क्वेश्चन, मतलब सिंपल एडिशन मल्टीप्लिकेशंस पे दे हैव आस्क्ड यू द क्वेश्चन। नाउ वी कम टू द मोर यूपीएससी क्वेश्चन, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के ऊपर डिस्कशन करना है विद लॉजिक। द एंटायर पेपर इज ऑफ द रीजनिंग टाइप, द प्रीवियस आल्सो वी विल डू। और भी और बहुत ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चंस करेंगे। अब ये वाला क्वेश्चन है, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, दैट इज दिस वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी। ठीक है, तो या वहाँ पे इस सारे दैट इज द एग्जैक्टली वी आर टॉकिंग अबाउट द रीजनिंग क्वेश्चन। ये रीजनिंग मतलब जो ट्रेडिशनल रीजनिंग के बारे में आप लोग सोच रहे हो, those traditional reasonings are nothing but those can be manageable. Those things also I'll give you the idea a little bit today in the class, but those things can be manageable. But these things, if you have to manage, you have to use the proper logic behind it. तो ये बोला p be a two digit number and q be the number consisting of the same digits written in the reverse order. P into Q is 3430. What is the difference between P and Q? What is the difference between P and Q? तो हम लोग ये कर सकते हैं P into Q is the 2430. तो 243 is nothing but is 3 raised to power of 5. If we see that is 243 is nothing but, तो इसको हम लोग इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं 243 और एक 10 आ गया और एक 10 आ गया, तो दिस 243 इज नथिंग बट 3 रेज टू पावर ऑफ 5, 10 आ गया तो इट गिव्स मी 2 रेज टू पावर ऑफ 5, 2 एंड 5। क्लियर? तो ये कितना हो जाएगा, व्हाट वी कैन डू दैट इज वी कैन डू दैट इज 3 क्यूब इनटू 3 स्क्वायर इनटू 2 इनटू 5। क्लियर? दिस इज द वे वी कैन फाइंड आउट द पावर। नाउ हमें ये पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है, दैट इज वी हैव टू फाइंड आउट द पी एंड क्यू। तो पी एंड क्यू फाइंड आउट करना है, लेकिन एक कंडीशन दे दिया, लेट पी एंड क्यू बी द डिजिट्स ऑफ द नंबर एंड क्यू बी द नंबर कंसिस्टिंग ऑफ द सेम डिजिट्स। डिजिट सेम होना चाहिए बट रिवर्स ऑर्डर। तो रिवर्स ऑर्डर मतलब अगर मान लो कि पी इज ए बी, इफ वी कंसिडर पी इज ए बी, तो क्यू कितना हो जाएगा, दैट इज द क्यू विल कम आउट टू बी और बी ए। If suppose P is AB, so Q will come out to be how much? That is the BA. Clear? So what we can do, that is we can find out in this way, that is 27 or 2 or 9 into 5. So एक number हो जाएगा 54 और एक number हो जाएगा 45. Okay? एक number, but this you have to use the logic. It is not that ये कोई ऐसा नहीं होगा कि आपको देखते ही पता चल जाएगा। यू हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ द लॉजिक विद प्रॉपर रीजनिंग कि कौन सा क्या नंबर्स हो सकते हैं। नंबर का प्रोडक्ट तो दे रखा है, लेकिन व्हाट कैन बी द पॉसिबल नंबर्स, दैट वी हैव टू फाइंड आउट। तो इन दोनों का डिफरेंस अगर देखा जाए तो डिफरेंस वी कैन सी इट इज द 9 इज द आंसर, इट इज द कमिंग आउट। तो द नंबर द आंसर शुड बी द 9। Now, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दैट हैज बीन आस्क्ड इन द यूपीएससी। That has been asked in the UPSC.
You can use that is the proper logic of the squares and the cubes to find out the things. You have to use the proper logic of the squares and the cubes. The age of the Mr. X last year was the square of a number, and it would be the cube of a number next year. Okay, and it would be the cube of the number next year. What is the least number of the years he must wait for his age to become the cube of a number again? मतलब फिर से उसके cube of the number again. Question seems to be simple, but if you see, the question is based on the squares and the cubes. The question is based on the squares and the cubes पे ऊपर. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, नंबर ले सकते हैं 1 2 3 4 5, उससे ज़्यादा लेने का जरूरत नहीं है. उस नंबर का स्क्वायर फाइंड आउट कर सकते हैं, उस नंबर का क्यूब फाइंड आउट कर. स्क्वायर इसका 1 हो जाएगा, ठीक, ये 1 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा. तो थोड़ा सा if we take it as the 6 over here, so it will come out to be 36. अगर इसकी क्यूब फाइंड आउट करें 1 8 27 देन 64 125, इसके ऊपर नहीं चाहिए 125, ऑलरेडी इट इज देयर. तो उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा 216. वी कैन नॉट एक्सपेक्ट एनीबॉडी nowadays to live for 216 years. तो अब देखते हैं क्वेश्चन का. एक तो आफ्टर रीडिंग द क्वेश्चन हमें ये समझ में आ गया स्क्वायर और क्यूब का है. तो अब दे रखा है द एज ऑफ द मिस्टर एक्स लास्ट ईयर. मतलब मानो अगर प्रेजेंट ईयर, तो प्रेजेंट ईयर कितना है 2023 है. तो लास्ट ईयर इट वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर, मींस 2022 इट इज टॉकिंग अबाउट. दैट इज 2022 वाज द स्क्वायर ऑफ अ नंबर एंड इट वुड बी अ क्यूब ऑफ अ नंबर नेक्स्ट ईयर. मतलब 2024 पे, that is in 2024 पे ये हो जाएगा, that is the cube of a number. What is the least number of the years, that is the years he must wait for his age to become the cube of a number again. तो अगर मानो कि last that is the, if we talk about this case, last year है ना. तो लास्ट ईयर से लास्ट ईयर which we are considering as 2002 प्लस 2 साल करेंगे, तो हमारा क्या आ जाएगा, जो क्यूब आ जाएगा विच विल बी 2024. ये बात हो रहा है. ठीक है, ये चीज हो रहा है कि लास्ट ईयर विच इज 2022, उस पे से 2 साल ऐड करेंगे. इफ वी ऐड 2 इयर्स, तो इट विल कम आउट टू बी, दैट इज इट विल कम आउट टू बी द ईयर ऑफ द 2024. और वो क्या हो जाएगा 2024, क्या हो जाएगा, दैट इज द 2024 हो जाएगा, दैट इज द क्यूब ऑफ द नंबर. 2024 हो जाएगा द क्यूब ऑफ द नंबर. तो अब उस क्वेश्चन को समझते हैं. मानो 2022 पे इट इज द 16 इज द एज. 2022 में 16 इज द एज, प्लस 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 2024 पे वो 18 हो जाएगा. तो 18 इज नॉट द क्यूब ऑफ एनी नंबर. 18 इज नॉट द क्यूब ऑफ एनी नंबर. तो नेक्स्ट नंबर लेते हैं 25. तो 25 अगर लेंगे तो 25 हो गया 2022 पे, उसकी एज हो गया 2022 पे, दैट इज 25. तो प्लस 2 करेंगे तो इट विल कम आउट टू बी 27, वेयर वी कैन सी दैट इज 27 इज अ क्यूब ऑफ अ नंबर. ठीक है, 27 इज द क्यूब ऑफ अ नंबर हो गया. तो अब क्या हो गया, दैट इज ये हो गया मेरा कंडीशन सेटिस्फाइड. और हमें उसके ऊपर नहीं जाना है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ इयर्स ही मस्ट वेट टू बिकम द क्यूब ऑफ अ नंबर अगेन. तो उसकी दैट इज एक्चुअली देखा जाए 25 हो गया, उसकी प्रेजेंट एज जो हो जाएगा 25 वाज द एज एट द ईयर 2022. मतलब 22 पे उसका जो 25 था, तो प्रेजेंट उसका अभी 26 है, ये ध्यान रखना. और 27 से 64 क्यूब जाने के लिए मुझे क्या करना होगा, 64 पे जाना होगा, लीस्ट उतना ही जाना है. आई हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस. ठीक है, तो डिफरेंस फाइंड आउट किया तो कितना आ जाएगा, दैट इज 38 आ जाएगा. तो 38 शुड बी माय आंसर.
तो ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन दे रखा है यूपीएससी ने विथ रेस्पेक्ट टू द स्क्वायर एंड द क्यूब ऑफ अ नंबर। हम लोग ऐसा सोचते हैं ना कि स्क्वायर एंड क्यूब ऑफ अ नंबर कैसे, दैट इज व्हाई दे विल आस्क यू डायरेक्टली, तो दे विल नॉट आस्क यू द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द स्क्वायर एंड द क्यूब ऑब्वियसली, directly they will not ask you the square and the cube of a number. So this is the way they will present you the square and the cube of a number. Clear? करते करते क्या हो जाएगा, 3 into 2 into 1। अब अगर देखा जाए ये क्या, ये प्रोडक्ट जो है, दिस प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट, वी हैव टू चेक, वी हैव टू चेक वेदर दिस प्रोडक्ट इज डिविजिबल बाय 10 और नॉट। तो ऑब्वियसली ये जो है प्रोडक्ट 9 8 6 3 2 1, मतलब 5 4 3 2 1, ये डिविजिबल बाय 10 है क्योंकि 10 जो है दैट इज इट इज अ मल्टीपल ऑफ 5 एंड 2, तो ऑब्वियसली 5 एंड 2 तो आएगा ही आएगा, तो ये 10 से डिविजिबल हो जाएगा। तो और तो ये नहीं होगा, दैट इज नॉट बोला है, तो ये वाला केस n की वैल्यू 10 नहीं हो सकता, हमें नॉट वाला केसेस फाइंड आउट करना। तो नॉट वाला केसेस फाइंड आउट करने के लिए अगर मानो जैसा सेकंड केस दे दिया, n की वैल्यू मैंने 11 दे दी, n की वैल्यू, क्योंकि हम लोग हर एक चीज को एक एक करके नहीं फाइंड आउट कर सकते, हमें जस्ट एक पैटर्न को देखना है कि क्या क्वेश्चन की मतलब क्या है, व्हाट इज द पैटर्न दे आर ट्राइंग टू आस्क यू। तो n की वैल्यू वैल्यू मान लेते 11 है, तो n की वैल्यू अगर 11 है तो ये प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा 10 into 9 into 8, ऐसा करते करते 3 into 2 into 1। क्या ये प्रोडक्ट 11 से डिविजिबल है, हमें ये देखना है कि ये प्रोडक्ट दैट इज 10 into 9 into 8 स्टिल दैट इज 3 into 2 1 डिवाइडेड बाय 11, क्या ये प्रोडक्ट क्या 11 से डिविजिबल है। तो ये देखा जाए दैट दिस प्रोडक्ट इज नॉट डिविजिबल बाय 11, if we see this product is not divisible by the 11। तो ये एक n की वैल्यू मिल गया हमें, तो वो सब वैल्यूज ऑफ n निकालना है विच इज नॉट डिविजिबल है, तो n का एक वैल्यू मिल गया मुझे। तो हमें अब क्वेश्चन की पैटर्न क्या पता चल रहा है, हमें ये देखना व्हाट इज द पैटर्न वी आर गेटिंग इन दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में एक पैटर्न पता चल रहा है कि n जो ले रखा हम लोग यहाँ पे 11 है, अगर अगला n की वैल्यू अगर 13 लेते हैं तो सेम कंडीशन आएगा कि जो प्रोडक्ट आएगा, मतलब प्रोडक्ट आएगा 12 से 1 तक, 12 into 11 into 10 करते करते 1 तक जाएगा, तो वो भी 13 से डिविजिबल नहीं है। तो इफ यू सी 11 13 17 ऐसा करते करते, तो दे आर एक्चुअली ट्राइंग टू आस्क यू, एक्चुअली दे आर ट्राइंग टू आस्क यू, मतलब इस तरह से दे आर नॉट आस्किंग यू द क्वेश्चन जो प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था कि दे आर ट्राइंग टू आस्क यू दैट इज व्हाट आर द प्राइम नंबर्स। डायरेक्टली तो दे कैन नॉट आस्क यू, कि डायरेक्टली दे कैन पुट यू कैन नॉट पुट यू द क्वेश्चन कि कौन से प्राइम नंबर्स है दैट इज 10 से 50 के बीच पे, तो वो नहीं पूछ रहा है डायरेक्टली, लेकिन क्वेश्चन का माध्यम से, मतलब विद द हेल्प ऑफ द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन दे आर ट्राइंग टू आस्क यू कि कौन से प्राइम नंबर्स है 10 और 50 के बीच पे। तो हम लोग को देख लेते हैं कौन से प्राइम नंबर है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है, फिर 29 है ना, फिर 31 है, 47 है, तो कितना हो गया, 3 6 कोई एक 11 13 17 19 20, कोई एक वो हो रहा है, तो इट शुड बी दैट इज द 11 शुड बी द केस। 11 should be the case. Now, next question. Next question है, that is ABCD are the four positive numbers such that their sum is the 4। अब इस पे बोला है कि पॉजिटिव नंबर्स है, they are talking about the positive numbers।
such that their sum is the 4, है ना, sum is the 4, then find the maximum value. हमें क्या find out करना है? That is the maximum value of this. अब पॉजिटिव नंबर्स का मतलब ये नहीं होता है सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर होता है. पॉजिटिव नंबर्स मतलब 1.5 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर. 1 का मतलब भी पॉजिटिव हो जाता है. 1 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर. 2 इज ऑल्सो अ पॉजिटिव नंबर. तो इनकी जो वैल्यूज है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू योर 4. अब कोई कोई हो सकता है जो मैथमेटिकल बैकग्राउंड के स्टूडेंट है, दे कैन ट्राई टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ एक एक्सप्रेशन होता है, उनको पता है मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड का, दैट इज दे ट्राई टू फाइंड आउट सच टाइप ऑफ द क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ द part that is the am, arithmetic mean is always greater than equal to, that is the geometric mean. Clear? They try to find out the case, that is the arithmetic mean is greater than equal to the geometric mean. तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या दे दिया? 4 दे दिया. हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 प्लस ए 1 प्लस बी 1 प्लस सी 1 प्लस डी फाइंड आउट करना. नाउ अगर जो लोग टेक्निकली नहीं करने चाहते इस क्वेश्चन को, जिनको ये सब अच्छा नहीं लगता है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द अरिथमेटिक मीन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द ज्योमेट्रिक मीन, दे कैन आल्सो फाइंड आउट द सेम थिंग लॉजिकली. दे कैन दैट इज फाइंड आउट द सेम थिंग लॉजिकली. लॉजिकली का मतलब क्या हो गया? हम लोगों को इसको समझना होगा थोड़ा सा लॉजिकली फाइंड आउट करने के लिए, तो आगे का भी ये आपको हेल्प हो जाएगा. तो फॉर एग्जाम्पल जैसा हमें दे दिया a प्लस बी इज इक्वल्स टू 4 दे दिया और हमें मैक्सिमम फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी. तो हम लोग क्या कर सकते हैं? 1 3 लिख सकते हैं, 2 2 लिख सकते हैं, 1.5 2.5 इस तरह के कुछ फिगर्स ले लिया. एंड आई हैव टू फाइंड आउट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ए बी. तो ए बी का मैक्सिमम वैल्यू इस केस पे 3 हो गया, इस केस पे 4 हो गया, इस केस पे 3.75 हो गया. इस केस पे दैट इज 3 4 और 3.75 हो गया. तो हमें ये देखा जाए मैक्सिमम कब हो रहा है. व्हेन इट इज कमिंग आउट टू बी द मैक्सिमम, इट इज कमिंग आउट टू बी द मैक्सिमम व्हेन द वैल्यूज आर द इक्वल. इट इज कमिंग आउट टू बी द मैक्सिमम, दैट इज 4 जब हो रहा है व्हेन द वैल्यूज आर द इक्वल. तो इसको हम लोग बोलते हैं लॉजिकली हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन, हाउ टू इंटरप्रेट द क्वेश्चन लॉजिकली. तो ये हमेशा ही एग्जिस्ट होता है. It always exists the thing in this way. Whenever they are equal, it will come out to be the maximum value. तो अब जैसे ए बी सी डी को 4 दे दिया और हम इस चारों को इक्वल कर दिया, तो इसकी जो भी प्रोडक्ट होगा चाहे उसके साथ कोई भी कांस्टेंट हो जाए, द प्रोडक्ट विल कम आउट टू बी द मैक्सिमम. तो ये 1 1 1 1 ले लिया, तो हमारा ये क्या हो जाएगा? ये 2 2 2 हो जाएगा. तो इट गिव्स मी द मैक्सिमम वैल्यू एज द 16. तो ये 16 हो जाएगा. तो इस लॉजिक को थोड़ा सा हमें याद रखना है. जिनको टेक्निकली those who don't want to solve the question technically with the help of the arithmetic mean, and जो although हमें ये जानना चाहिए क्योंकि they ask you the question in this way. अगर ये प्रॉपर्टी हमें आ जाए कि arithmetic की, लेकिन वो डिफरेंट टॉपिक्स ही है. arithmetic mean is greater than equal to the geometric mean. Now next है, इसका नहीं, ये अगर after we get the time we will do this part. इसको देखते हैं, इस तरह का क्वेश्चन जिसको हम लोग ऑल्दो बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग. ठीक है ना? ये भी एक लॉजिकल पार्ट है, रीजनिंग के टाइप ऑफ द थिंग्स है. हाँ, मतलब इसी टॉपिक को ही हम लोग इतना फोकस करते हैं, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग. ये इससे मैक्सिमम क्वेश्चन हमारा नंबर्स के ऊपर जितने क्वेश्चन होता है वो सॉल्व हो जाता है. अगर ये फिक्स हो जाए कि द कॉन्सेप्ट, इफ यू गेट दिस कॉन्सेप्ट, तो इट बिकम्स वेरी इजी. नाउ आप लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग किया होगा. दैट इज फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग दो चीज़ों पे बेस्ड होता है, जो थोड़ा सा मैं प्रीव्यू दे देता हूँ. द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द काउंटिंग इज बेस्ड ऑन द टू थिंग्स. द टू थिंग्स आर द और एंड द एंड. ठीक है, और का मतलब क्या हो जाएगा? दैट इज द प्लस साइन. एंड का मतलब क्या हो जाएगा? इट विल कम आउट टू बी द मल्टीप्लिकेशन. तो और एंड ये हो गया. सेकेंड ऑफ ऑल क्या हो गया? दैट इज डायरेक्टली इन द क्वेश्चन, डायरेक्टली इन द क्वेश्चन
they don't give you that is they don't give you the or the and. तो हमें after that is reading the question we have to see that is कैसे कैसे और एंड की एप्लीकेशन होता है ना. दैट इज और का मतलब एंड का मतलब हो गया. फर्स्ट ऑफ ऑल आई एक्सप्लेन यू द एंड का मतलब ये हो गया कि व्हेनेवर द इवेंट कम्स आउट टू बी इन द डिपेंडेंसी. जब भी इवेंट डिपेंडेंट हो जाएगा, व्हेनेवर द इवेंट कम्स आउट टू बी इन द डिपेंडेंट फॉर्म, so obviously it is an and case. And whenever the event comes out to be independent, अब dependent का मतलब क्या हो जाएगा? That is the help is the required. Toward the that is the you require some help, the dependency comes. And whenever that is the help is not required to perform the task, the any event, for example that any event, so whenever that is the you don't require any help to perform that task, so that comes out to be the independent event. So जब भी event independent हो जाए, you should put the addition part, and whenever the event comes out to be the dependent, you should always put the multiplication. तो इसी के ऊपर देखते हैं, that is logically, but ये बहुत important part है. बहुत बार इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी ने पूछा हुआ है. दैट इज द सिमिलर टाइप ऑफ द क्वेश्चन. ये है तो यूपीएससी का एक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन है ना, है कॉन्सेप्ट इज द बेस्ड ऑन द यूपीएससी. तो ये दे रखा है दैट इज द 3 विलेजेस एबीसी लाई ऑन अ हाईवे. 3 villages that is ABC lie on a highway. There are 10 more routes connecting A and B, 8 more routes connecting B and C, and 5 more routes connecting A and C. If that is, if B is between A and C, in how many ways one can go from B to C? मतलब हमें B to C जाना है. If B is between A and C, if B is between A and C, so in how many ways one can go from B2C. तो यहाँ पे जो लैंग्वेज दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है 10 मोर रूट्स है ना. यहाँ पे दे रखा है दैट इज 8 मोर रूट्स. यहाँ पे दे रखा है 5 मोर रूट्स. दीज आर द कनेक्टिंग दैट इज ए एंड सी. मोर बोला है, मोर मीनिंग इज दैट इज द एक तो हाईवे है ही है, उसके ऊपर ज्यादा है 10 है, 5 है, 8 है, इस तरह से. तो इफ आई ड्रॉ द फिगर, इफ आई ड्रॉ द फिगर, ये बी है, ये ए है, ये सी है. If I draw the figure that is ABC का, and if I draw the figure over here, है ना, तो figure is the drawn. तो हमें देखा जाए कि एक तो हाईवे पे है ही है, ABC lie on a highway. तो A to B we can say that is the 11 routes है. 11 routes इसलिए हो रहा है, 1 is the highway and 10 is the more extra routes you have. 1 is the highway and the 10 is the more extra routes you have. B to C पे that is 8 more routes. So B to C पे we have the 9 routes. B to C पे we have the 9 routes. That is 8 more routes है connecting B and C. तो more है, एक तो highway है और एक extra है. That is the 8 more है, तो 9 हो जाएगा. And 5 more routes connecting A to C. अब A to C वाला जो है वो 5 डायरेक्टली है, क्योंकि वो हाईवे से कनेक्टेड नहीं है कोई भी, वो डायरेक्ट कनेक्टेड है ए टू सी. तो उस पर गलती मत करना कि उस पर 6 लिख दिया. जैसा पहले वाले का 11 लिखा, सेकंड वाले का 9 लिखा, तो ये नहीं कि थर्ड वाले के लिए 6 हो जाएगा, थर्ड वाले का 5 ही रहेगा. क्लियर? So now we have to find out in how many ways that is one can go from B to C. मतलब B to C अगर डायरेक्टली जाना है तो कैसे जाएंगे? तो एक तरीका तो हम लोग देख सकते हैं कि B to C जाने के लिए हम लोग डायरेक्टली जा सकते हैं. B to C we can go, it is the 9 ways. Clear? B to C we can go in the 9 ways. And the second way we can go from, अगर मान लेते कि B to C डायरेक्टली वी हैव सम ट्रैफिक, तो थोड़ा सा ट्रैफिक है, तो हम लोग थोड़ा सा राउंड अबाउट जा सकते हैं. राउंड अबाउट कैसे जा सकते हैं? पहले B to A फिर A to C जा सकते हैं. दैट इज B to A देन A to C, है ना. तो इस पे क्या है, जब B to C हम लोग पहुंचने जाते हैं, वी वांट टू रीच फ्रॉम B to C, तो यहाँ पे सेकंड केस की, स्पेशली दिस सेकंड केस पे हमें क्या है, A का हेल्प लेना पड़ रहा है. तो व्हेन वी आर कंसिडरिंग द हेल्प ऑफ द A, जब A का हेल्प हो रहा है,
तब ऑब्वियसली दैट बिकम्स अ डिपेंडेंट इवेंट. तो B2A है हमारा 11 एंड A2C है हमारा 5. तो ये मल्टीप्लाई इसलिए हो रहा है कि डिपेंडेंट इवेंट के कारण. तो 55 हो गया, टोटल हो गया 64, क्योंकि टोटल हमेशा दैट इज द एडिशन कम्स आउट इन एनी क्वेश्चन. So that gives me the total as the 64 cases. Clear? Now ये बहुत common question है, that is the UPSC ask you. It is also a type of the UPSC question. बहुत ही common question है concept wise UPSC के लिए, है ना. Find the number of the different signals that can be generated by arranging at least two flags in order. By arranging at least two flags in order, one below the other on a vertical staff, if 5 different flags are available. If the 5 different flags are the available. Okay? तो कितना हो जाएगा, दैट इज एट लीस्ट 2 लेना है, मिनिमम वी हैव टू टेक 2 फ्लैग्स. तो केसेस क्या हो सकता है, दैट इज द 2 फ्लैग्स का केस हो सकता है. केसेस इट कैन बी दैट इज द 3 फ्लैग्स. केसेस इट कैन बी वी कैन हैव द 4 फ्लैग्स. द केसेस वी कैन हैव इज द केसेस इज द 5 फ्लैग्स. दीज आर द केसेस वी कैन हैव. ठीक है. तो जब 2 फ्लैग्स का केसेस आ रहा है एंड वी हैव द it is given 5 different flags दे रखा है, that is the 5 different flags are the given. So in that cases it will come out to be how much, 5 into 4 which is 20. तो फिर ये कितना हो जाएगा, 5 into 4 into 3, है ना. मल्टीप्लाई क्यों हो रहा है, द मल्टीप्लीकेशन इज टेकिंग प्लेस बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द केस कि बोथ द फ्लैग्स वी हैव टू टेक साइमल्टेनियसली. जैसा 3 फ्लैग्स के लिए 5 into 4 into 3 इसलिए हो रहा है क्योंकि हमें तीनों फ्लैग को एक साथ लेना है. तो एक साथ मतलब टुगेदर, व्हेन एवर इट इज टुगेदर कम्स आउट द डिपेंडेंसी आ जाता है. डिपेंडेंसी का मतलब ही दैट इज द मल्टीप्लीकेशन. तो टोटल जो आ रहा है दैट इज द टोटल, इट इज कमिंग आउट टू बी और 320 केसेस. तो टोटल सिग्नल्स दैट कैन बी, और ये बहुत ही दैट इज द यूपीएससी हैव आस्क्ड यू अ क्वेश्चन. ये मतलब ये वाला क्वेश्चन मैंने सारा जो फ्लैग्स के क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को जिस्ट दे दिया, है ना. और आपको हमेशा याद रहना चाहिए जब भी मल्टीप्लिकेशन हो रहा है तो अरेंजमेंट टेक्स प्लेस ऑटोमेटिकली. द अरेंजमेंट इज टेकिंग प्लेस द ऑटोमेटिकली. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है. With respect to the flag का ही क्वेश्चन पे बेस्ड है. A new flag is to be designed with 6 vertical strips using some or all of the colors. The colors are the given is the colors given are the yellow, green, blue, and red. Then the number of the ways this can be done such that no two adjacent strips have the same color. Clear? No two adjacent strips. Then the number of ways this can be done such that no two adjacent strips have the same color. Okay. A new flag is to be designed with 6 vertical strips using some or all of the colors बोला है. लेकिन अब ये है 6, the idea is you have the 6 vertical strips. You have the 6 vertical strips and out of those 6 vertical strips you have the 4 colors. तो ये जो 4 कलर है, 4 कलर के कारण क्या हो जाएगा, that is the repetition of the color will take place. The repetition of the color will take place. So then the number of ways this can be done such that no two adjacent strips have the same color. मतलब adjacently strips पे same color नहीं होगा. Adjacently it will not have the same color. Clear? तो is to be designed with 6 vertical strips. तो ये 6 places हो गया.
तो एडजेसेंटली मतलब क्या हो जाएगा, साइड साइड पे येलो नहीं हो सकता, येलो हो सकता है लेकिन और छोड़ के फिर कहीं पे येलो हो सकता है, एडजेसेंटली सेम नहीं होगा। तो आउट ऑफ दिस 6 प्लेसेस द यू कैन चूज एनी प्लेस एज द फर्स्ट प्लेस, हम कोई भी एक प्लेस को फर्स्ट प्लेस चूज कर सकते हैं। दैट इज फर्स्ट प्लेस, सपोज इसको ले लिया 4, तो फर्स्ट प्लेस के पास हमेशा ही 4 चॉइस रहेगा, कोई भी एक कलर आ सकता है। लेकिन मान लेते हैं कि फर्स्ट प्लेस पे अगर रेड आ गया, तो एडजेसेंटली रेड नहीं आ सकता, मतलब इस प्लेस पे और इस प्लेस पे रेड नहीं आ सकता, तो उसके पास 3-3 चॉइसेस हो जाएगा। और फिर रिपीट नहीं हो, मतलब ये कलर जो होगा कि यहाँ नहीं आ सकता, फिर वो बाकी सारे प्लेसेस पे 3-3 हो जाएगा, क्योंकि 3 के जगह अगर 4 पुट कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, दैट इज इट विल हैव द adjacently it will not have the same color. So obviously the idea it will come out to be, if you don't want adjacently to be the same color, so every place, that is the every place except the first place, it will have the three choices. It will have the three choices. Only the first place you will have the 4 choices. So इस हिसाब से you have to understand the question. Now if you look at the options को accordingly you can find out, क्योंकि ऑप्शंस भी इस तरह से दे रखा है, 12 इंटू 81, 6 इंटू 81, 24 इंटू 81 एंड नन ऑफ दिस। तो हम लोग साफ साफ देख रहे हैं, ये 12 हो गया और ये वाला पार्ट 81 हो गया। ऑब्वियसली प्रोडक्ट तो होगा ही होगा, क्योंकि इट इज अ डिपेंडेंट इवेंट। हाउ इट इज कमिंग आउट टू बी द डिपेंडेंट इवेंट, बिकॉज ऑल द 6 कलर्स, मतलब सारे के सारे 6 स्ट्रिप्स जो है, all the 6 strips we are taking simultaneously. Clear? Now, next question. ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, इट वाज आस्क्ड इन द यूपीएससी। यूपीएससी का क्वेश्चन है, इन अ क्वेश्चन ऑफ अ टेस्ट पेपर देयर आर द 5 आइटम्स ईच अंडर द लिस्ट ए एंड द लिस्ट बी। क्लियर? मतलब क्या हो जाएगा, दैट इज द 5 आइटम्स अंडर द लिस्ट ए एंड 5 आइटम्स अंडर द लिस्ट बी, है ना? The examinees are required to match each item under the list A with its corresponding correct item under the list B. मतलब match the following होगी, means it comes out to be the match the following, list A के साथ list B का match the following. Further it is given, that is the दो conditions भी दे रखा है क्वेश्चन में। Further it is given that no examinee has given the correct answer and answers of no two examinees are identical. मतलब क्या हो जाएगा कि that is examinees have not given the has given the correct answer and answers of no two examinees are the identical. Clear? ये आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए। आइडेंटिकल नहीं होना चाहिए मतलब क्या हो गया, जैसा लिस्ट ए है और यहाँ पे लिस्ट बी है, लिस्ट ए है एंड लिस्ट बी है, तो मान के चलते ये 1 है, तो ऐसा कोई नहीं होगा। मान के चलते किसी ने ऐसा मैच कर दिया 1 के साथ ए, 2 के साथ बी, 3 के साथ सी, डी के साथ 4 के साथ डी एंड 5 के साथ ई, किसी ने इस तरह से मैच कर दिया। तो इसका मतलब ये नहीं कि कोई और एक स्टूडेंट इस तरह से देंगे आंसर। तो इसलिए बोला आंसर्स ऑफ नो टू एग्जामिनीज आर द आइडेंटिकल। और किसी ने नो एग्जामिनी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, ऐसा कोई एग्जामिनी नहीं है कि आंसर्स को करेक्ट दे रखा है। तो इसका कितना चॉइसेस हो जाएगा अगर देखा जाए, तो इफ यू अंडरस्टैंड द पार्ट कि जैसा फर्स्ट है लिस्ट अंडर के अंदर, दैट इज द फर्स्ट है, तो फर्स्ट के लिए 5 चॉइसेस, फिर सेकंड के लिए फिर 4 चॉइसेस, मतलब ए टू, जब एक मार्क हो जाएगा फर्स्ट के लिए, जब एक मार्क कर देगा तब दूसरे के लिए 4 ही चॉइस बचेगा, फिर 3 चॉइसेस, फिर 2 चॉइसेस, फिर 1 चॉइसेस, तो 120 हो गया। उसपे से एक माइनस करना होगा, क्योंकि यहाँ पे बोला है नो एग्जामिनी हैज गिवन द करेक्ट आंसर, मतलब एक 120 केस पे एक ना एक आंसर तो करेक्ट होगा ही होगा, वो नहीं पार्ट होगा, तो वो माइनस करना होगा, तो दैट गिव्स मी द 119, तो दैट गिव्स मी द आंसर एज द 119। क्लियर हो रहा है?
मल्टीप्लिकेशन तो होगा कि सारे 5 के 5 क्वेश्चन वी हैव टू आंसर द थिंग्स. Okay, next is the again UPSC question. Next is again UPSC question. तो ये क्या दे रखा है? That is a very good question. It has been asked. A question paper has the 10 questions. Each question could be answered as the true or false. Each candidate answer all the question. Yet no two candidate wrote the answers in an identical sequence. मैंने जो identical sequence को समझा है कि what is the meaning of the word identical sequence. How many different sequence of answers are possible? How many different sequence of answers are the possible? तो अगर मैं इसका छोटा सा एक वर्जन समझा देता हूँ ताकि आपको क्लैरिटी आ जाए. जैसा यहाँ पे 10 क्वेश्चन है, इंस्टेड ऑफ 10 क्वेश्चन इफ आई टेक 3 क्वेश्चन फॉर एग्जाम्पल, इस 3 क्वेश्चन को आंसर करना होगा ट्रू फॉल्स पे. तो जैसा फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है. अब इसको किस किस तरीके से हम लोग आंसर कर सकते हैं? सभी को ट्रू कर सकते हैं, एक तरीका ये ट्रू ट्रू फॉल्स कर सकते हैं. अब फॉल्स का भी केसेस हो सकता है. ठीक है, तो ऐसा आ गया. दैट इज इट गिव्स यू, अगर देखा जाए तो ये 8 केसेस आ गए. 8 cases it is coming. Each candidate answered all the question. Yet no two candidate wrote the. इसका मतलब फिर से मैं समझा देता हूँ. Yet no two candidate wrote the answers in the identical sequence. मतलब क्या हो गया? अगर पहला कैंडिडेट ने सारा क्वेश्चन को आंसर ट्रू किया तो ऐसा कोई कैंडिडेट नहीं होगा जिसपे सारे आंसर्स को ट्रू 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 करेगा. हाउ मेनी डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल? कितना सारा डिफरेंट सीक्वेंस पॉसिबल है? कितना सारा डिफरेंट सीक्वेंस ऑफ द आंसर्स आर द पॉसिबल? तो यहाँ पे 8 है. 8 कैसा आया वो चीज को समझते हैं. ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड क्वेश्चन है, ये थर्ड क्वेश्चन है. तो हर क्वेश्चन के लिए हमारे पास क्या है? दो दो चॉइसेस है. दैट इज फॉर 2 2 एंड 2. तो दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग 8 एज द आंसर. Similarly, if we have the 10, similarly, if we have that is the 10 questions, तो हर एक पे दो दो चॉइसेस आएगा. तो इट इज कमिंग आउट टू बी 2 क्यूब. So this will come out to be 2 raised to power of 10, and 2 raised to power of 10 is a very common value which gives me that is 1024. So my answer should be 1024. ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है, सिमिलर क्वेश्चन है. यू कैन सी है ना. in a question paper there are 5 questions to be attempted and answer to each of the question has two choices, true or false. It is given that no two candidates have given the answers of the 5 question in an identical sequence. For this to happen, the maximum number, so the maximum number of the candidate is how much? That is 2 raised to power of 5, which is 32. So that means the answer should be my 2 raised to power of 5, that is 32. So if you understand this concept, if you understand the previous concept, so there is no problem to understand this part. So you can directly answer. Now, ये भी UPSC का ही question है. This was also asked in the UPSC. So in a question paper, there are 4 multiple choice questions. Each question have 5 choices with only one choice for its correct answer. एक ही करेक्ट आंसर का है. दैट इज ईच क्वेश्चन हैव 5 choices with only one choice for its correct answer. What is the total number of ways in which the candidate will not get all the answers correct? So find out. Same thing. सेम थिंग है, सेम कॉन्सेप्ट है. हमारा जो पेपर है, दैट इज प्रीलिम्स का जो पेपर है, उस पे एक क्वेश्चन में 4 चॉइसेस है, लेकिन यहाँ पे 4 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है और यहाँ पे 5 चॉइसेस है. ईच क्वेश्चन हैव द 5 चॉइसेस इंस्टेड ऑफ द 4 चॉइसेस. ईच क्वेश्चन हैव द 5 चॉइसेस विद ओनली वन चॉइस फॉर इट्स करेक्ट आंसर.
है ना. What is the total number of ways in which a candidate will not get all the four answers correct? It will not get all the four answers correct. तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन है एंड फोर्थ क्वेश्चन. सब में हमारे पास क्या है? फाइव फाइव चॉइसेस, ए बी सी डी एंड ई. सब में पांच पांच चॉइसेस है. वी हैव फॉर ईच ऑफ द क्वेश्चन वी हैव फाइव फाइव चॉइसेस. तो फाइव फाइव चॉइसेस मतलब क्या हो गया? टोटल हमारा आंसर करने का तरीका हो जाएगा 625 वेज. तो ये देखो, लेकिन यहाँ पे बोला है दैट इज वन मोर कंडीशन इज गिवन, each can that is number of ways in which a candidate will not get all the four answers correct. All the four answers correct मतलब इस जो 625 का तरीका है, 625 तरीके में एक तरीका तो ऐसा है ही है जिसपे आपका सारे आंसर उस पे करेक्ट है, चारों के चारों क्वेश्चन का आंसर्स करेक्ट है. तो वो नहीं होना चाहिए हमारा. एक करेक्ट हो सकता है क्वेश्चन में, दो करेक्ट हो सकता है, तीन करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन चार नहीं करेक्ट हो सकता. और ऐसा भी होगा कि एक भी करेक्ट नहीं है. तो ये एक वाला जो केस है, जो सब सारे आंसर जिस पे करेक्ट है वो माइनस करना होगा, तो दैट गिव्स मी 624. तो द आंसर शुड बी माय 624. ना ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. दिस वाज आल्सो आस्क्ड इन द यूपीएससी. So it is asked if there are five questions and five persons are there. Five tasks and the five persons are there. Now, task one cannot be assigned to either person one or two. Task two must be assigned to either person three or four. Each person is to be assigned one task. In how many ways can the assignment be done? Okay? In how many ways can the assignment be done? ये टास्क वन है, ये टास्क टू है, टास्क थ्री, task 4 and task 5. So the idea is that is task 3 4 5 के लिए कोई conditions दे नहीं रखा है. For the task 3 4 and 5 there is no condition is the given. The condition is given only for the task 1 and task 2. So you can try and find out, that is if you want you can try and find out the things. तो क्या आ जाएगा? जनरली हम लोग क्या स्टार्ट कर देते, टास्क वन से स्टार्ट कर देते, है ना. इस पे ये दैट इज द पॉइंट यू ट्राई टू अंडरस्टैंड. वी शुड नॉट स्टार्ट विद द टास्क वन, है ना. तो क्यों टास्क वन से हमें स्टार्ट नहीं करना चाहिए? व्हाई वी शुड नॉट स्टार्ट विद द टास्क वन? फॉर एग्जाम्पल मान के चलते अगर टास्क वन से हम लोग स्टार्ट कर देते हैं और हमें ये पता है कि टास्क वन कैन नॉट बी असाइन टू द पर्सन, ईदर टू द पर्सन वन और पर्सन टू. फॉर द टास्क वन वी हैव द थ्री चॉइसेस. लेकिन उस थ्री चॉइसेस पे ऐसा भी हो गया कि हमारा जो पर्सन थ्री है वो आ गया, यहाँ पे टास्क वन में आ गया. मीन्स टास्क टू पे फिर हमारे पास दो चॉइसेस के जगह एक चॉइसेस बच जाए. ट्राई टू अंडरस्टैंड. That is, most of the students start this question with from the task one, है ना. मतलब अधिकतर स्टूडेंट क्या करते हैं कि दे टास्क वन से स्टार्ट कर देते हैं. लेकिन ये टास्क वन का वो नहीं है. दैट इज यू शुड नॉट स्टार्ट विद द टास्क वन, बिकॉज द फैक्ट इज कि अगर मान लो कि पर्सन थ्री व पर्सन फोर टास्क वन में आ गया, तो टास्क टू के लिए हमारे पास दो चॉइसेस नहीं बचेगा, हमारे टास्क टू के लिए सिर्फ एक ही चॉइस बचेगा, विच इज नॉट possible. So instead of starting with the task one, we should start with the that is the task two. टू के पास कितना हो जाएगा? टू चॉइसेस. व्हाई इट इज टू चॉइसेस? आई एम राइटिंग दैट इज ईदर दैट इज द पर्सन थ्री विल कम और द पर्सन फोर विल कम. ये हो गया टू चॉइसेस, है ना. तो एक के पास कितना चॉइसेस बचेगा? एक के पास एक्चुअली टास्क पर्सन वन और पर्सन टू तो नहीं आएगा, प्लस पर्सन थ्री व फोर में से जो भी एक टास्क टू पे आ चुका है वो भी नहीं आएगा, तो इस पे भी दो चॉइसेस. तो ये फुलफिल हो चुका है. बाकी में टास्क थ्री फोर और फाइव पे, फॉर द टास्क थ्री एंड फोर फाइव वी डोंट हैव एनी कंडीशन गिवन. तो बाकी में तीन चॉइसेस, दो चॉइसेस और एक चॉइसेस होगी. So that means total we have 24 ways according to the condition given to complete the task, that is the 24 ways.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन भी यूपीएससी का ही है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. इट इज अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. That is, for a sports meet, a winner stand comprising the wooden blocks is in the following form. So wooden block का form दे रखा है, that is the figure is the given. There are the 6 different colors available to choose from. Each of the 3 wooden blocks is to be painted such that no two of them has the same color. Such that no two of them have the same color. In how many different ways can the winner stand be painted? The winner का stand कितने, बहुत ही simple है. That is कितने सारे कलर दे रखा है. There are the 6 to choose from each of the 3 wooden blocks. Wooden blocks is to be painted and no two of them have the सेम कलर. मतलब इसके पास अगर 6 चॉइसेस है तो इसके पास 5 चॉइसेस बचेगा, इसके पास बचेगा 4 चॉइसेस. ये बोलते हैं. दैट इज अगर नो टू ऑफ देम हैव द सेम कलर, तो फर्स्ट के पास अगर 6 चॉइसेस है तो सेकंड के पास 5 चॉइसेस और थर्ड के लिए 4 चॉइसेस. इन हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द विनर स्टैंड बी पेंटेड? तो इट विल बी 120, दैट इज 6 into 5 into 4, which gives me the 120 cases. Now, ये भी यूपीएससी का ही क्वेश्चन है. This is also asked in the UPSC. बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दे रखा है. It is a logical based question. You can see. On a railway route between the two places A and B, there are the 10 stations on the route. Okay. On a railway route between two places A and B, there are the 10 stations on the way. मतलब A and B के बीच में 10 stations हो गया, तो A and B को include करके 12 stations हो. Okay. If 4 new stations are to be added, 4 new stations are to be added, how many types of the new tickets will be required if each ticket is to issue for one way journey? ठीक है, एक ही वे का जर्नी का है. तो हमारे पास क्या है, दैट इज इनिशियली 12 है, 12 स्टेशन इंक्लूडिंग ए बी, है ना. तो एक ओनली वन वे वी हैव टू कंसिडर, नॉट बोथ द वेज. वी हैव टू कंसिडर वन वे. तो दैट इज, ये हो जाएगा 132. ठीक है. इन वन इनिशियली, दैट इज द इनिशियली, जब ये हो गया हमारा ए बी, ये हो गया हमारा ए बी, उसके बीच पे कितना स्टेशन है, 10 स्टेशन है. तो टोटल मेरा कितना हो गया, 12 स्टेशन. तो 12 स्टेशन के लिए मुझे कितने तरीके से हम लोग टिकट ले सकते हैं वन वे के लिए, दैट इज 12 इंटू 11, दैट इज 132. ना, जब मेरा पास बोला है कि हाउ मेनी न्यू टिकट्स विल बी रिक्वायर्ड, अगर 4 न्यू स्टेशन नीड्स टू बी दी एडेड, तो 4 न्यू स्टेशंस को अगर ऐड कर दिया, ये है ए, ये भी है बी, ये है 10, और यहाँ पे 4 और ऐड कर, तो मेरा पास अब 16 स्टेशन टोटल, दैट इज इंक्लूडिंग ए बी और 4 न्यू स्टेशंस मिला के मेरा पास आ गया 16 स्टेशन. और ये 16 स्टेशंस का टिकट लेने के लिए, दैट इज पुराने प्लस नया सब मिला के कितना हो जाएगा, 16 इंटू 50, 240. 240 हो गया टोटल, जिसपे न्यू टिकट्स आर आल्सो इंक्लूडेड एज वेल एज द, दैट इज द ओल्ड टिकट्स आर आल्सो इंक्लूडेड. क्योंकि हम लोग बार बार एक चीज बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं चीजों पे, दैट इज डायरेक्टली वी कैन नॉट गेट द न्यू केसेस. व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट from the old cases, we have to from the total cases, we have to find out the, we have to subtract and to get the new cases. तो कितना सारे हो जाएगा, इस पे तो टोटल केसेस है 240 पे से, तो टोटल केसेस है, और इस पे से सिर्फ पुराने पुराने केसेस है. तो न्यू टिकट्स का कितना हो जाएगा, 240 माइनस 132 विच इज इक्वल्स टू 108. तो मेरा 1, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है.
बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट हम लोग जितना भी किया हुआ है, तो मतलब ये सारे कॉन्सेप्ट को आपको ध्यान में रखना होगा वहाँ पे। कॉन्सेप्ट्स विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा पास दैट इज द कॉन्सेप्ट, दे कैन नॉट चेंज, दे कैन ओनली चेंज द लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन। जो लैंग्वेज हो जाएगा उसको चेंज कर देगा, फिगर्स को चेंज कर देगा, लेकिन का कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। और इस तरह के जो क्वेश्चंस होता है, ये लॉजिकली मतलब इंटरप्रेट करने के अलावा और कुछ नहीं कर सकता। ओके, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं डिजिट्स एंड नंबर्स के बारे में, थोड़ा सा समझते हैं चीज़ों को। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि पिछले साल देखा जाए तो दे हैव आस्क्ड ऑलमोस्ट दैट इज द 12 टू 14 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस पार्ट। बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए इसका मतलब इसके ऊपर, और उसके पहले भी पूछा हुआ है, तो हर साल इफ यू सॉल्व द प्रीवियस ईयर पेपर, यू विल गेट द आइडिया। तो क्वेश्चन दे रखा है दैट इज द हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000 सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ देयर डिजिट इज 7। हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 100 एंड 1000, कि 100 और 1000 के बीच पे कितने सारे नंबर्स है सच दैट एटलीस्ट वन ऑफ द डिजिट, एक डिजिट साथ होना ही होना चाहिए ना। इसको एक तो हो गया कि केस बाय केस फाइंड आउट करें, और एक हो गया कि हम लोग दैट इज एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से फाइंड आउट करें। तो हम लोग पहले देखते हैं कि केस बाय केस कैसा फाइंड आउट करेंगे। दैट इज हो गया कि नंबर पे वन डिजिट 7 हो गया। फिर दूसरा केस ये हो गया हमारे पास 2 डिजिट 7, मतलब 2 डिजिट्स है 7 का। और तीसरा केस जो एक ही नंबर हो सकता है तीनों डिजिट 7, 3 डिजिट 7, ऑल द 3 डिजिट्स आर 7। 1 डिजिट 7 का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे 7 आ गया तो 7 को ब्लॉक कर दिया, यहाँ पे 7 आ गया, भाई यहाँ पे 7 आ गया, इसको हम लोग बॉक्स कर देते हैं, मतलब वी डोंट कंसिडर दैट इनटू अ चॉइस केस, है ना। अब क्या हो जाएगा, दैट इज द फर्स्ट प्लेस पे, दैट इज इफ वी कंसिडर द फर्स्ट प्लेस पे क्या हो जाएगा, दैट इज फर्स्ट प्लेस वी विल हैव द 7 तो आएगा नहीं, तो 0 भी नहीं आएगा, 8 चॉइसेस, तो ये 9 चॉइसेस, तो इट गिव्स मी 70। सिमिलरली यहाँ पे भी 8, यहाँ पे भी 9, दैट इज 72, और यहाँ पे 9 इंटू 9 विच इज 81। तो ये हो गया 5, और ये हो गया 225। तो 225 ऐसा नंबर्स हो गया, 225 ऐसा नंबर्स हो गया जो हमारे एक डिजिट नंबर 7, ओनली वन डिजिट इज द 7। ना अगर दो डिजिट्स अगर 7 है, इफ द 2 डिजिट्स आर द 7, 2 डिजिट्स अगर 7 है, if the 2 digits are the 7, if we have to consider, तो 2 digits अगर 7 है तो we can always take 7 over here, 7 over here, we can take 7 over here, 7 over here, we can take 7 over here and 7 over, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे तो सिमिलरली दैट इज 7 आ चुका है, 7 और कहीं नहीं आ सकता है, तो यहाँ पे 8 चॉइसेस, और 0 भी नहीं आ सकता क्योंकि फर्स्ट प्लेस है। यू कैन ऑलवेज नो व्हाई 0 डजंट कम्स इन द फर्स्ट प्लेस, बिकॉज ये 3 डिजिट नंबर के बारे में बात कर रहा है, बिटवीन 100 एंड 1000। बिटवीन 100 एंड 1000 मीनिंग इज दैट इज ऑल 3 डिजिट नंबर्स दे आर टॉकिंग अबाउट, तो फर्स्ट प्लेस पे 0 नहीं आ सकता। इफ द फर्स्ट प्लेस पे 0 आ जाएगा तो इट विल नॉट बी अ 3 डिजिट नंबर, बट इट विल बी अ 2 डिजिट नंबर। इस पे 9 चॉइसेस, इस पे 9 चॉइसेस, तो 8 नंबर, 9 नंबर, 9 नंबर, दैट इज 18, और ये 26 नंबर। और 3 डिजिट 7 जो हो जाएगा, दैट इज 3 डिजिट 7 का एक ही नंबर हो जाएगा, दैट इज 777। तो दैट नंबर विल कम आउट टू बी 1। क्लियर। तो टोटल मेरा जो ये आ गया, दैट गिव्स मी 250। ठीक है, 252। नाउ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग, ये तो चलो 3 डिजिट के क्वेश्चन, दैट इज दिस इज अ 3 डिजिट बेस्ड क्वेश्चन, बट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग ऐसा फाइंड आउट नहीं कर सकते। वी कैन नॉट फाइंड आउट द इन दिस वे फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। तो व्हाट वी कैन डू ओवर हियर, हम लोग क्या करेंगे, दैट इज फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखेंगे कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स है ना। कितने सारे 3 डिजिट नंबर्स है, फर्स्ट प्लेस पे 9 चॉइसेस, 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 9 चॉ
100, तो वी हैव 900 थ्री डिजिट नंबर्स। अब ये जो 900 थ्री डिजिट नंबर्स है, इस पे क्या होगा, ये सारे नंबर इंक्लूडेड है, 225 जो नंबर है वो सारे नंबर्स इंक्लूडेड है, ये जो 26 नंबर है ये भी इंक्लूडेड है, जो एक नंबर है वो भी इंक्लूडेड है, मतलब टोटल 252 नंबर्स इंक्लूडेड है ये 900 नंबर। लेकिन बहुत सारे ऐसा भी नंबर इंक्लूडेड है जिसपे एक भी नंबर 7 नहीं है, जैसा 123 है, 123 इज अ थ्री डिजिट नंबर, बट उस पे एक भी 7 नहीं है, तो उसको हमें क्या करना होगा, सब्ट्रैक्ट करना होगा, दैट इज आई हैव टू फाइंड आउट दैट इज हाउ मेनी ऑफ दोज numbers are there which does not contain any of the digit as the 7, which does not contain any of the digit as the 7, उसको सब्ट्रैक्ट कर दें। तो फर्स्ट प्लेस पे जीरो नहीं आएगा और 7 भी नहीं आएगा, तो 8 चॉइसेस। नेक्स्ट प्लेस पे जीरो तो आ सकता है लेकिन 7 नहीं आ सकता, फिर 9 चॉइसेस, फिर 9 चॉइसेस। तो हमें माइनस करना होगा, दैट इज तो सेम आंसर वी आर गेटिंग। तो फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मुझे ऐसे ही सॉल्व करना है, चाहे क्योंकि यूपीएससी ने ये तो हम लोग ने सिंपल क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन यूपीएससी हैव आस्क्ड दैट इज बेस्ड ऑन दिस, दैट इज ऑलमोस्ट, if you see, they have asked you with respect to that, that is the 4 digit के ऊपर, 4 digit है, मैंने तो 3 digit ले रखा है, that is we have taken the example, but it hardly matters, the concept remains the same, whether it is a 3 digit number or a 4 digit number, the concept remains the same, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही रहेगा, फ्रॉम द टोटल यू विल सब्ट्रैक्ट द केस व्हिच आर नॉट रिक्वायर्ड, नॉट ओनली फॉर दिस केस, प्रीवियसली हम लोग ऐसे ही किया हुआ है, दिस इज द ओनली कॉन्सेप्ट व्हिच कैन गिव यू द आंसर इन वन और टू लाइन। नेक्स्ट और एक ये क्वेश्चन करते हैं, हाउ मेनी इंटीजर्स ग्रेटर देन द ट्रिपल नाइन, how many integers that is the greater than the triple line but not greater than the 4000 can be formed with the digit 0 1 2 3 4 if the repetition of the digits is the allowed, repetition is the allowed thereafter, but that is, this is the important statement, the important statement given is the but not greater than the 4000, important statement given is the but not greater than the 4000 can be formed with the digits are given 0 1 2 3 4 if repetition of the digits is the alpha, okay? तो चार प्लेसेस हो जाएगा, फर्स्ट प्लेस पे दैट इज जीरो नहीं आएगा, वन टू और थ्री तीन प्लेसेस आ जाएगा, दैट इज इधर वन कैन कम और टू कैन कम और थ्री कैन कम, बाकी प्लेसेस पे दैट इज पांच पांच चॉइसेस है, ठीक है, क्योंकि बाकी प्लेसेस पे जीरो भी आ सकता है, तो इट इज ग्रेटर देन द ट्रिपल नाइन। फर्स्ट प्लेस पे तीन इज नॉट अ डिजिट वी आर कंसिडरिंग, यू माइट बी नोइंग इट, दैट इज द चॉइस वी आर कंसिडरिंग, तो चॉइस ले लिया, तो या तो वन आ सकते हैं, या तो टू आ सकते हैं, थ्री आ सकते हैं, फोर नहीं आ सकता, क्योंकि फोर लेते ही अगर नेक्स्ट नंबर अगर वन भी हो गया तो इट विल बी मोर देन द 4000, तो ये कितना हो गया, दैट इज वी विल हैव 375 नाउ। ना इस पे दोनों ऑप्शंस दे रखा है, तो इस पे थोड़ा ट्रिक हो जाता है चीज़ों को, दैट इज हाउ दैट इज द ट्रिकी द थिंग्स कम्स आउट, वी नो 375 तो ये हो गया जिसपे दैट इज द ग्रेटर देन द 1000 बट नॉट ग्रेटर देन द 4000 कैन बी फॉर्म। नाउ मींस 4000 हम लोग इंक्लूड कर सकते हैं, दैट इज वी कैन इंक्लूड द 4000 ओवर हियर, that is we can do plus 1 over here which gives me 376, the answer should be my 376, not 375. The answer should be my 376 but not 370. Okay? अब चलते थोड़ा सा, ये सारे रीजनिंग और वो कर लिया, अब चलते थोड़ा सा दैट इज द ट्रेडिशनल रीजनिंग्स के ऊपर भी।
इसको बोलते हैं दैट इज द इसको क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज द डेटा अरेंजमेंट। अब देखा जाए तो यूपीएससी आस्क यू द डेटा अरेंजमेंट ऑलमोस्ट एवरी ईयर, है ना, किसी ना किसी फॉर्म में। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू लर्न दैट इज द डेटा अरेंजमेंट केस। So first you read the question, which is very important for us. Reading the question is the very important. बोला है that is the there are the 10 books to each of the English, Hindi, Maths, Physics and Biology. The books are kept. The books are kept in a bags of the 5 colors, that is red, blue, black, yellow and green. Each bag is allotted to one of the following students: Rajesh, Anita, Veena, Asha and Sophia. Data arrangement पे कोई that is you cannot find out directly और हर बार पूछते, that is almost that is the 3 question they give you direct data arrangement. Entirely paper तो बहुत सारे questions ऐसा होता है जैसा ब्लड रिलेशंस पे भी अरेंजमेंट होता है, तो बेसिक्स तो यही है। और एवरी ईयर दे आस्क यू द 3 to 4 क्वेश्चन। तो हमें इसका फर्स्ट ऑफ ऑल तरीके बहुत है, दैट इज द टैबुलेशन। टैबुलेशन इज द मोस्ट, यू कैन से, इम्पॉर्टेंट केस फॉर द डेटा अरेंजमेंट, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द डेटा अरेंजमेंट। नाउ द इम्पॉर्टेंट पार्ट, हम लोग इसको इम्पॉर्टेंट पार्ट को भी मार्क करेंगे। तो ये पार्ट दे रखा है, दैट इज ये पार्ट दे रखा है रेड ब्लू, ये बुक्स दे रखा है, ईच नेम भी दे रखा है: राजेश, अनीता, वीना, आशा एंड सोफिया। नो टू बुक्स ऑफ द no two books of the same subject are in the same color bag। सेम कलर में मतलब दोनों हिंदी बुक के एक ही बैग पे नहीं होगा, दो इंग्लिश बुक एक ही बैग पे नहीं होगा, दोनों मैथ्स के बुक एक ही बैग पे नहीं होगा, फिजिक्स के बायो के। तो नो टू बुक्स ऑफ द सेम सब्जेक्ट आर इन द सेम कलर बैग। A Hindi book is not kept with either a bio book or a maths book. A Hindi book is not kept with a bio book or a Hindi book is not kept with a maths book। ये दे रहा है। The Hindi book is not kept with either a bio book or a maths book. Asa carries the book। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, दैट इज द स्टूडेंट्स ले लेते हैं। कलर ऑफ द बैग और बुक्स, तो एक एक करके ये सॉल्व कर लो। स्टूडेंट्स पे कौन कौन है? राजेश है, अनीता है, टीना है, आशा है, सोफिया। Clear? There are the 10 books to each of the English, Hindi, Maths, Physics and Biology. The books are kept in the bags of the 5 colors: red, blue, black, yellow and the green. Each bag is allotted to one of the following। ये लिख दिया, no two books are the हिंदी बुक वो भी लिख लिया। आशा कैरीज, अब आशा का देखते हैं। आशा कैरीज द बुक फ्रॉम द सब्जेक्ट अमंग मैथ्स, बायो, फिजिक्स। उनका हो गया, दैट इज द आशा का जो दे रखा है, carries the books from the that is the maths, physics, bio, Hindi only। Anita carries English and a Hindi book। Anita carries a English and a Hindi book। Rajesh does not like to carry books on biology, maths, biology, English or maths। तो राजेश डज नॉट लाइक टू कैरी बुक्स ऑन बायो, इंग्लिश और मैथ्स। तो बायो, इंग्लिश और मैथ्स नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, दैट इज द बायो, इंग्लिश, मैथ्स नहीं होगा, तो वी हैव दैट इज द फिजिक्स एंड हिंदी। अब एक चीज क्या हो गया, नाउ ट्राई टू, यू हैव टू एनालाइज साइमल्टेनियसली। क्या एनालाइज करेंगे?
कि हमारे पास 2 हिंदी के बुक है, तो दोनों एग्ज़ॉस्ट हो चुका है। एक तो राजेश के पास चला गया, एक अनीता के पास चला गया। तो ऑब्वियसली दैट इज़ द हिंदी बुक विल नॉट कम ओवर। ऑब्वियसली आफ्टर दैट केस दैट इज़ द हिंदी बुक विल नॉट कम ओवर। ओके? Red, blue, black colored are allotted to Anita. Anita is allotted the red respectively दे रखा है. तो red, blue is allotted to Rajesh. Blue is allotted to Rajesh and black is allotted to Sophia respectively. Red and green. Red and green colored bags have one book of the same subject. रेड और ग्रीन के बीच पे दैट इज एक बुक कॉमन होना चाहिए. तो अब देखो ग्रीन या तो वीना के पास होगा या तो ग्रीन कलर बैग या तो वीना के पास होगा या तो आशा के पास होगा. ठीक है. तो आउट ऑफ दिस अगर देखा जाए अगर बुक दैट शुड बी कॉमन रेड के साथ ग्रीन का जो बुक कॉमन होगा वो सिर्फ इंग्लिश हो सकता है. दैट इज द कॉमन बुक दैट इज पॉसिबल विच इज इंग्लिश इज द पॉसिबल. क्योंकि हिंदी बुक तो कॉमन होगा नहीं क्योंकि हिंदी इज द बुक विच इज ऑलरेडी एग्जॉस्टेड. तो मतलब अगर कॉमन इंग्लिश है तो और इंग्लिश आशा के साथ पॉसिबल नहीं है तो ऑब्वियसली ग्रीन यहाँ पे आ जाए. ग्रीन यहाँ पे आ जाएगा तो हमारे पास बचेगा कौन सा? येलो. येलो. तो आशा के पास जो कलर ऑफ द बैग होगा दैट विल बी द येलो एंड बीना के पास जो कलर ऑफ द बैग होगा होगा दैट इज द ग्रीन और उसके साथ जो कॉमन आ जाएगा दैट इज द इंग्लिश. ठीक है. नाउ रेड एंड द ग्रीन कलर हैव वन बुक ऑफ द सेम सब्जेक्ट. ब्लैक एंड येलो हैव द सेम सब्जेक्ट बुक. अगर सेम सब्जेक्ट का बुक होना चाहिए ब्लैक एंड येलो मतलब आशा एंड सोफिया के पास अगर सेम सब्जेक्ट का बुक होना चाहिए दैट इज ओनली पॉसिबल व्हेन यू हैव द टू बुक्स ऑफ ईच ऑफ द सब्जेक्ट. तो फिजिक्स के जो फिजिक्स एक ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो चुका है तो उसके पास दो पॉसिबल नहीं है. तो पॉसिबल कौन सा? मैथ्स एंड बायो. तो यहाँ पे मैथ्स एंड बायो होगा इस पे भी मैथ्स एंड बायो होगा. तो फिजिक्स कहाँ पे जाएगा? यहाँ पे चला जाएगा. तो क्वेश्चन में बोला है द बुक्स दैट वीना कैरीज आर ऑफ. वीना कैरीज कितना हो जाएगा? इंग्लिश एंड द फिजिक्स. तो इंग्लिश एंड द फिजिक्स शुड बी क्लियर. तो ऑल्दो दैट इज इस पे एक ही क्वेश्चन दे हैव आस्क्ड यू बट समटाइम्स दे गिव यू टू क्वेश्चंस आल्सो बेस्ड ऑन दिस. बट डोंट एक्सपेक्ट कि ये बहुत ही जैसा छोटा सा इंफॉर्मेशन रहेगा. नो, इंफॉर्मेशन विल नॉट बी द लेस. यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगा और उसको डिफरेंट टाइप्स ऑफ द टैबुलेशन में फाइंड आउट करना होगा. देयर आर द डिफरेंट वेज बट जो शॉर्ट आफ्टर है जो सबसे जो मैक्सिमम पूछा गया है द मैक्सिमम दैट हैज बीन आस्क्ड इज द टैबुलेशन फॉर्म ऑफ द डेटा. Okay, next question we move to the read the question which is important for us. That is 6 persons, Mr. Ajay Dev, Mrs. VM, Mrs. Subra Sen, Mr. RS. Same thing, Mr. DV and Mr. VC are working in the 3 different branches of the same company. 2 each are working at the Mumbai, Bangalore and Pune branch. 3 of them are the supervisors. 1 is the manager and the remaining are the assistant manager. 1 of them is in the personal department, 2 others are in the accounts department, while the remaining 3 are in the marketing department. So after reading the information, मतलब इतना सा information read करने के बाद, इतना सा information को read करने के बाद हमारे पास ये आना चाहिए कि क्या टेबल पे टैबुलेशन में क्या क्या होगा. तो टैबुलेशन में अगर देखा जाए तो पर्सन हो जाएगा.
ठीक है। एक दैट इज द ब्रांच हो जाएगा, कौन सी ब्रांच पे कौन है। एक तो हो जाएगा डिपार्टमेंट हो जाएगा, और डेजिग्नेशन हो जाएगा। और एक हो जाएगा डिपार्टमेंट। ठीक है, तो पर्सन में कौन सा हो जाएगा, दैट इज मिस्टर एडी। फिर हो जाएगा मिसेस पीएम। फिर हो जाएगा मिसेस एसएस। ठीक है, फिर आ जाएगा मिस्टर आरएस। फिर आ जाएगा मिस्टर डीवी। फिर आ जाएगा मिसेस पीसी। ठीक है, ये हो गया दैट इज द 6%। तो ये हो गया 6%, ये दे दिया। तो it is given 6 persons are given. These are the working in the three different branches of the same company. Two each are working in the Mumbai, Bangalore and Pune branch. Three of them are super. अब यहाँ से bulletin start हो जाएगा. So we have to now the question can be solved with only with the help of the bulletins. That is one by one हम लोग bulletin को जाएंगे and we will read and we will try to fill up the table. एक एक करके हम लोग बुलेटिन्स को रीड करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट द टेबल। तो ये हो गया दैट इज द मिसेस एसएस इज नीदर इन द मुंबई ब्रांच नॉट इन द बैंगलोर ब्रांच। एसएस तो अगर तीन ही ब्रांच है उसमें से मुंबई और बैंगलोर में नहीं है तो मिसेस एसएस इज इन द पुणे ब्रांच। ठीक है, मिस्टर आरएस होल्ड्स द पोजीशन ऑफ द असिस्टेंट मैनेजर। डेजिग्नेशन है असिस्टेंट मैनेजर। assistant manager. RS holds the position of the assistant manager. However, he does not like to work in the Bangalore branch. He does not likes to work in the Bangalore. Does not like to work in the Bangalore branch. Mr. AD Ajay Dev. Ajay Dev is a supervisor. Designation wise, he is a supervisor. Designation wise, he is a supervisor. Mr. AD is a supervisor in the accounts department. Department is the accounts, and at the Mumbai branch. Branch is the Mumbai. Branch is the Mumbai. Miss VM, Vinamulli, Miss VM, yeah, VM is an assistant manager. Designation wise, he is an assistant manager. Assistant manager. VM is the assistant manager, marketing at Bangalore. Marketing and the Bangalore. One of the gentlemen, working in the accounts department is at the Pune branch. He is the senior supervisor. अब जो बच गया है working in the that is the Pune branch. So जो बच गया है Mr. DV and the Mrs. VC. So Mrs. VC cannot be possible because the word it is that is given is the gentleman. So only Mr. DV is possible. So branch wise it will be the Pune. Branch wise it will be the Pune. One of the gentlemen working in the accounts department. That is the department it is working in the accounts department. He is the senior supervisor. Okay. Mrs. VC works as a manager. Designation wise is a manager. Designation wise manager. She is neither in the marketing nor in the accounts department. So department wise अगर marketing नहीं है तो one of them is in the personal, so that becomes a personal department. Personal department. तो बाकी जो बच जाएगा तो it will come out to be the marketing. Marketing के तीन है and this is also marketing. Okay, so that is if you see one of them in the personal department, yeah, आ गया, that is Mr. PC. Two others are in the accounts department. Accounts department में Mr. DB है and Mr. AD है. While the remaining three you can see these are the three.
the VMSS and the RS are in the marketing department. Clear? Designation wise अगर देखा जाए तो to each of them. अच्छा, इस पे हो गया, दैट इज पुणे हो चुका है, ये बैंगलोर नहीं होगा तो ये मुंबई हो जाएगा और ये हो जाएगा बैंगलोर. Three of them are the supervisor. हाँ, तो one is manager and remaining assistant manager. मतलब दो assistant manager आ गया, एक manager आ गया, तो ये supervisor. This will come out to be the supervisor. So although that is, it will take the time to complete the table. Although it will take some time to complete the table, but once the table is the completed, connecting over here, it has the 5 questions. Connecting over here, it has the 5 questions, but over there also you will get that is the 4 questions. There is no problem in it. So let us see the part. First question. Let us see the part. Which of the following group consists of the supervisors? Which of the following group consists of the supervisors? That is the Ajay, Deo, DV and SS. So that gives me the third case. Okay? Who among the following is a personal manager? Personal manager is the VC. From which branch Mr. DV operate from the Pune branch? Which of the following is the true? Both assistant manager works in the marketing department. This you can see. And sixth, it is given, that is, which of the following combination is not true? That is the RS. RS manager marketing. So 5 questions दे रखा है, लेकिन उस अगर इस तरह से टेबल आ जाए तो 4 questions दे देते हैं. You can always expect for the 4 questions. Now, next, that is, we come to the next question. Next question भी data arrangement के ऊपर ही है. It is based on the data arrangement. It is given A Aurobindo Bablu, जिसका initials we can take it. That is A, B, Chittaranjan का C, Dwarka का D, Angelina का E, and Farooq का F are the 6 students in a class. Okay. B and C are shorter than the F but heavier than A. Always that is in the data arrangement. The important thing, you have to read the datas first. We cannot do anything before that. B and C are the shorter than F but heavier than A. D is heavier than B and taller than C. E is shorter than D but taller than F. F is the heavier than D. A is shorter than E but taller than A. F. ठीक है. अब वो उस पे क्वेश्चन दे रखा है, तो मतलब इस पे 2 ही केसेस है. आफ्टर रीडिंग द फर्स्ट टाइम we can see that is there are the 2 cases are the appearing. One is the height wise, another is the weight wise. तो हम लोग इसको इस टेबल को इस हिसाब से segregate कर लेंगे, that is height wise and the weight wise. We will segregate the table in this way, height wise and the weight wise. So A, B, C, D, E and F are the 6 students in a class. बोल दिया. B and C are shorter than F but heavier than A. मतलब we are taking the initials. So from this point, we can take, that is, B and C are shorter than F and B and C are heavier than A. Okay? We can always write out the things in this way. Next is the D is the heavier than B and taller than C. Taller than C, and D is the heavier than B. D is the heavier than B. बोल दिया. E is shorter than D but taller than F. E is shorter than D, taller than F. F is the heavier than D.
F is the heavier than D. तो ये लिख दिया मैंने. A is shorter than E. A is shorter than E. A is shorter than E, but taller than F. A is shorter than E, but taller than F. Now, first of all, that is हमें जो जो informations दे रखा है, whichever the informations are the given. Based on that information, first we will try to make the table. So what we can do, first of all, that is इन दोनों को club कर लिया. If we club these two, हम लोग ये लिख सकते हैं, that is F is less than A less than E less than D. ठीक है, ये क्लब हो गया. अब इसको और इसको अगर क्लब कर लिया हम लोगों ने, if we club these two, तो फाइनली हम लोग लिख सकते हैं B and C is F then A then E then B. ये हो जाएगा. ठीक है, अब इसका तो ज्यादा कुछ नहीं दे रखा है, दैट इज इसका हो जाएगा बी एंड सी. बी एंड ए से ये है, देन डी देन एफ. सी का तो एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता है, लेकिन सी का इतना पता है, इट इज ग्रेटर देन द ए. दैट इज सी का वी डोंट नो द एग्जैक्ट लोकेशन और द एग्जैक्ट प्लेस, बट वन ऑफ द थिंग दैट इज क्लियर, दैट इज द सी इज द ग्रेटर देन द C is the greater than the A. That is the point we know. Okay. Now, the question is, that is, who among them is the tallest? If you look at the questions, if you look at the questions, that is, who among them is the tallest? तो tallest अगर देखा जाए तो D हो जाएगा, है ना. Second question, who is third from the top? Who is third from the top when they are arranged in the descending order? तो साफ साफ दिख रहा है A, है ना. Which of the following groups of the friends is shorter than the A? Shorter than the A, B, C and F. तो फोर्थ हो जाएगा. Who among them is the lighter? अब lighter के लिए हम लोग we can, ये तो weight wise तो the condition is the given, ये बहुत important है. That is हम लोग क्या करते हैं, that is we try to find out the things by looking at one thing, but हमें क्या है, exact location of the C तो पता है, C A से ज़्यादा है, लेकिन एक चीज हम लोग को जो मिस आउट करेंगे इस पार्ट पे, दैट इज E का पोजीशन नहीं दे रहा. The position of the E is not given to us. ठीक है, तो since the position of the E is not given to us, तो in this case अगर अब उसकी बात करें तो इस पे आंसर आना चाहिए, that is the data inadequate. And the 11th question, that is, if we talk about the 11th question, which of the following statement is true for F as regards to the height and the weight? So that is the he is heavier. This, if you, when whatever we have done according to this part, you can see third option आ जाएगा. ये थर्ड ऑप्शन आ जाएगा, दैट इज ही इज हेवियर देन B and C but shorter than E, sorry, and shorter than D. Clear? Idea is clear about this? तो ये हो गया डेटा अरेंजमेंट का पार्ट, फर्स्ट पार्ट. तो डेटा अरेंजमेंट का और भी पार्ट होता है, थोड़ा सा वो भी देख लेते हैं. ये भी एक तरीके से डेटा अरेंजमेंट है. दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द केस ऑफ द डेटा अरेंजमेंट. So you can read the question and find out the things. There are a team of the five is to be selected
A team of the 5 is to be selected from amongst the 5 boys, from amongst the five boys, that is A, B, C, D, E, and 4 girls, that is P, Q, R, and S. Some criteria of the selections are the given. अब इस पे क्या है, that is in this case of the data arrangement, the table is not possible to make because वो table के format पे नहीं है चीज. It is given what A and S has to be together. S has to be together. P cannot be put with R. D and Q cannot go together. C and E has to be A and S has to be together. R cannot be put with B. So ये that is the conditions are the given. Okay, and according to the condition, we have to find out the cases. According to the condition, we have to find out the cases of the data. ये इस तरह से चीजों को दे रखा है. So first question है, that is if 2 members have to be the boys, the team will consist of. The team किसका होगा? The team will consist of. तो इस पहला वाला पॉसिबल नहीं है क्योंकि डी एंड क्यू है. इस पे ए एंड एस नहीं है, इस पे ए एंड एस, क्योंकि ए एंड एस हैज टू बी द टुगेदर. तो ओनली वन पॉसिबिलिटी कम्स, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. ओनली वन पॉसिबिलिटी कम्स, दैट इज द थर्ड ऑप्शन. क्लियर? तो हम लोग वो देख लिया कंडीशंस क्या क्या है, उसी हिसाब से वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द. Now, the second case is, that is the second question, if R be one of the members, the other member of the team R. तो R अगर है तो R के साथ कोई कंडीशन है, R होगा तो B नहीं हो सकता. ठीक है? If R is one of the case, then if R be one of the others of the team. ठीक है? ये पॉसिबल नहीं है, दैट इज द D and Q एक साथ नहीं हो सकता. और R cannot be put with B. और दूसरा केसेस क्या है, C एंड E को एक साथ जाना है, A एंड S को एक साथ जाना है. तो दिस विल कम आउट टू बी कौन कौन हो सकता है, दैट इज एक साथ कौन कौन हो सकता है. तो C एंड E हैव टू बी पुट टुगेदर. ये इसलिए नहीं हो सकता, ये कंडीशंस को देखते जाना है हमें और सॉल्व करते जाना है. दैट इज वी हैव टू सी द कंडीशन एंड सॉल्व आउट द. क्लियर? कोई डाउट है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी ऑल्सो. Now, if two of the members of the are girls and D is one of the members of the team other than the D. D अगर है तो Q तो नहीं आ सकते according to this case. D cannot be put with the Q. तो D cannot be put with the Q. तो ये दोनों तो ऐसे ही नहीं होगा. ये ऐसे ही नहीं होगा. A के साथ S होना चाहिए. तो that gives me the third option. If A and C are the members, the other of the team cannot be. इस पे थोड़ा सा चेंज है, it says cannot be. तो दैट इज ए है तो एस तो आना चाहिए. तो इस पे ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है, ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि इस पे एस नहीं है. तो दैट मीन्स अदर देन कैन नॉट बी पे ये हो जाएगा. बाकी जो है दैट इज द पॉसिबल केस है. बाकी जो चीज़ है दैट इज द पॉसिबल केस. That is if including, that is the P, if including the P, है ना,
at least 3 members are the girls, the members of the team are other than the P अगर होगा तो क्या होगा, P के साथ R नहीं हो सकता, P के साथ R नहीं हो सकता, तो ये पॉसिबल नहीं है P के साथ R, A के साथ S होनी चाहिए, A के साथ S होनी चाहिए, तो ये हो जाएगा। Clear? The idea is that clear about this case. Now next question that is very simple है, that is you can find out, ये हो जाएगा 2, तो इसको that is the condition is already given कि Kamal, Gautam and the Harsh are the intelligent, Kamal and the Rajkumar and Janak are the hardworking, Rajkumar, Harsh are the honest. Which of the following person is neither hardworking nor ambitious? That is Harsh हो जाएगा. And which of the following person is neither honest nor hardworking but is ambitious? That is ये गौतम हो जाएगा. ठीक है, तो इसका तो कोई ज्यादा है नहीं, सिंपल, दैट इज यू हैव टू रीड द केस एंड यू हैव टू फाइंड आउट द पार्ट, ओनली आफ्टर रीडिंग यू कैन फाइंड आउट द थिंग्स वेरी इजी. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट सेट, दैट इज, ये मतलब इस तरह का क्वेश्चन दे आस्क यू द पार्ट. दैट इज ओवर हियर सीक्वेंस की बात चल रही है, सीक्वेंस और पजल्स के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे इस पे. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इस पे कोई जैसा सीरीज के क्वेश्चन है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर डूइंग द सीरीज क्वेश्चन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्यों सीरीज के क्वेश्चन पूछा जाता है. कि सीरीज के क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है कि वो सेम कॉन्सेप्ट एक्चुअली पजल्स पे भी यूज हो, द सेम दैट इज द सीरीज कॉन्सेप्ट इज यूज इन द पजल्स आल्सो. ठीक है, तो इसलिए सीरीज के क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट है हमारे लिए. तो फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, ये फर्स्ट 5 एक्चुअली सीरीज के पार्ट है, फिर मिसिंग पार्ट भी है ना. तो वी विल फाइंड आउट, विल ट्राई टू फाइंड आउट टू द पजल्स पार्ट. तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं पहला 5 क्वेश्चन करके. लेट अस फाइंड आउट द फर्स्ट 5 क्वेश्चन. तो ये हो गया 2, 9, 28, 65 दे रहा. तो 2 का मतलब हो गया, ये हो जाएगा 1 क्यूब प्लस 1 हो गया 2. 9 का मतलब हो गया दैट इज क्यूब प्लस 1. 28 का मतलब हो गया थ्री क्यूब प्लस 1. 65 का मतलब हो गया दैट इज 4 क्यूब प्लस 1. नेक्स्ट हो गया दैट इज 126 का हो गया दैट इज 5 क्यूब प्लस 1. तो इट गिव्स मी 126 एज द आंसर. ओके, तो ये जो पैटर्न है दैट इज हाउ दिस कम्स आउट, दिस पैटर्न, कि कैसा हम लोग पैटर्न को बना रहे. तो यू हैव टू दिस, यू हैव टू डिराइव, इट विल not be directly it will strike to you, but you have to basically find out the things. फिर है 2, 6, 4, 14. तो ये जो है दैट इज 2, 6, 14, 26. तो इसका डिफरेंस देखो क्या है, 4 है, फिर 8 है, फिर 12 है,
फिर 16 हो जाएगा। अगर ये 16 हो जाएगा तो इट शुड बी योर 42, है ना। नो, नेक्स्ट है दैट इज, ये हो गया 101, 187। तो 101 से अगर 100 जाना है तो ये हो गया। लेकिन हमें अगर बैकवर्ड देखे, दैट इज विल बी द गिव यू द एक्चुअल आइडिया बैकवर्ड से कैसे, मतलब 71 से 46 आ रहा है, फिर ये कितने का रहा है 87 से 91। 87 से 91 16 का डिफरेंस है, और ये हो जाएगा दैट इज द 25 का डिफरेंस। तो मतलब ये एक्चुअली 71 से 46 के द 25 का डिफरेंस है, तो ये हो गया -5 स्क्वायर, ये हो गया -4 स्क्वायर, है ना। तो आगे कितना आना चाहिए, -3 स्क्वायर आना चाहिए। और फिर आगे आना चाहिए 2 स्क्वायर। तो दैट मीन्स दैट इज यहाँ पे आना चाहिए 96, 1 स्क्वायर। तो ये दैट गिव्स मी द 96 एज द आंसर। तो 96 के लिए क्या हो जाएगा, दैट इज 100 के बाद -2 स्क्वायर करेंगे। फर्स्ट दे रखा है दैट इज द 101, फर्स्ट इट इज गिवन एज द 101। तो 101 से -1 स्क्वायर किया तो 100 आ गया, 100 से -2 स्क्वायर किया तो 96 आ गया। फिर 96 से हम लोग -9 कर दिया तो 87 आ गया। फिर 87 से -4 स्क्वायर कर दिया तो आ गया दैट इज 71 इन दिस वे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है दैट इज, नेक्स्ट तो बहुत ही सिंपल है, दैट इज 100 पार्ट। दैट इज 100, 50, 52, 26। तो 100 से डिवाइड बाई 2, फिर +2, फिर डिवाइड बाई 2, +2, फिर डिवाइड बाई 2 मतलब 14 हो जाएगा। तो 14 हो जाएगा तो सेकंड ऑप्शन। तो दैट इज डिवाइड बाई 2, फिर +2 हो जाएगा तो 16, 16 को डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट हो गया दैट इज 4, 9, 20, 43। तो 4 से 9 जाने के लिए कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 प्लस 1 विच इज 9, 9 इंटू 2 प्लस 2 विच इज दैट इज 20, 20 इंटू 2 प्लस 3 दैट इज 43, 43 into 2 plus 4 which is 90. So that gives me the first option as the 90. Clear? तो ये डेटा अरेंजमेंट का ये हो गया दैट इज द सीरीज कंप्लीशन का केस। बहुत ज़्यादा मतलब ये जस्ट टू गिव यू द आइडिया रिवीजन के पार्ट के लिए। अब इस तरह का जो क्वेश्चन है, जो 42 से 45 का क्वेश्चन है, अब यहाँ पे क्या दे रखा है, in each of the question given below, in each of the question given below, 3 out of the 4 set of the numbers follow the same pattern, while the fourth one is a different. Okay? While the fourth one is the different. Find out the set that does not follow the pattern of the other three. Find out the set that does not follow the pattern of the other three. तो हमें क्या देखना होगा, कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है। तो ये तो पैटर्न, ये जो है पैटर्न फॉलो कर रहा है। ये क्या हो जाएगा, 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, बीच का आंसर 10 आ रहा है। फिर 6 स्क्वायर प्लस, ये भी फॉलो कर रहा है, दैट इज 49 प्लस 9, 58। ये भी फॉलो कर रहा है, दैट इज 16 प्लस 4, 20।
फॉलो कौन सा नहीं कर रहा है, ये नहीं कर रहा, फोर्थ ऑप्शन. तो यू हैव टू फाइंड आउट द केसेस इन दिस वे कि कौन सा फॉलो नहीं कर रहा है एक्चुअली, विच वन इट इज नॉट फॉलोइंग द केस. सिमिलरली इफ यू लुक एट द सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, दैट इज बहुत ही सिंपल है. फॉर द सेकंड क्वेश्चन दैट इफ यू फाइंड आउट, तो ये क्या है, 436 अंदर 2 दे रखा है ना. 436 अंदर 2 दैट इज, ये हो गया 6, 121 इज दिस. तो ये कुछ नहीं है, 49 कैसे आ रहा है, दैट इज 3 + 4 का होल स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 49. दैट इज 6 + 5 का होल स्क्वायर विच इज 121. और ये हो जाएगा 4 + 2 का होल स्क्वायर विच इज 36. तो हमारा आ जाएगा दैट इज द थर्ड ऑप्शन. ठीक है, विच इज नॉट फॉलो. नेक्स्ट, दैट इज द नेक्स्ट वन, विच वन इट इज नॉट फॉलो. तो क्या आ जाएगा, दैट इज, ये फॉलो नहीं कर रहा है, दैट इज ये फॉलो कर रहा है, दैट इज 7 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर विच इज 49. फिर ये फॉलो कर रहा है 8 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर इज फॉलोइंग 13 प्लस 13 इंटू 3 39. ये हो जाएगा दैट इज 9 स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर 15 और 3 45. ये फॉलो नहीं कर. Clear? The next one is, that is, if we move to the next one, if we move to the next one, तो ये कितना होगा, 6 minus 3 का होल क्यूब इज टू 27. 12 minus 7 का होल क्यूब which is 5 to 125. 13 minus 11 का होल क्यूब which is 2, which is equals to 8. तो ये फॉलो नहीं, नॉट फॉलो. क्लियर. नाउ कमिंग टू द नंबर पजल, ये सबसे जो बहुत मतलब हमेशा ही देखा जाए तो नंबर पजल्स के ऊपर समटाइम्स दे आस्क यू 2-3 क्वेश्चंस. तब 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेते हैं नंबर पजल्स के. दे आस्क यू दैट इज द, सिंस द फिगर्स आर नॉट, तो वी सी कि नंबर पजल्स के ऊपर कितना क्वेश्चंस वो पूछा हुआ है. एक्चुअली फिगर्स हम लोग थोड़ा सा क्रॉस चेक कर लेते हैं. ये 81 है, ये 439 है, 9 है और 16 है. ये 49 है, 64 है और ये 100 है. ठीक है. तो ये क्या रिलेशंस बना हुआ है, दैट इज 81, 16 और वो. एक्चुअली हमें नंबर पजल्स पे जितना सारे नंबर्स दे रखा है, द नंबर्स आर द गिवन, वी हैव टू कनेक्ट ऑल द नंबर फर्स्ट ऑफ. ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वी हैव टू कनेक्ट ऑल द नंबर्स. ये हमेशा याद रखिएगा आप लोग कि आपको नंबर्स को कनेक्ट करना हो. ये नहीं कि कोई एक ही पैटर्न में फॉलो करके फाइंड आउट कर, नहीं, एक ही पैटर्न में फॉलो फाइंड आउट नहीं होता. तो ये कितना हो गया, 16 का 4, दैट इज 9 का 3 और 81 का 9. तो इसलिए इसे आ गया 439. तो सिमिलरली 64 का 8 आ जाएगा, 10 का 100 का 10 आ जाएगा और 7 आ जाएगा. तो हमारा आ जाएगा दैट इज द थर्ड ऑप्शन. तो इट विल कम आउट टू बी द थर्ड ऑप्शन. क्लियर. नेक्स्ट आ गया, अगर कनेक्टिंग नंबर्स ये 28 दे रखा है इन द मिडल, 5, 3, 4, 2 एंड द मिडल इज 28, 8, then 8, ये भी 8 ही है, 8, 8, 4 and question mark, then that is given is the 12. ठीक है, these are given as the 12 दे रखा है. So some of you have joined little bit late, I think so. But we are already, that is the
end of the session. So you can follow the sessions later on. We have done lot of the discussions today. Okay. The next question, if we follow the next question, Ashutosh, hi. If we follow the next question, so ये 28 कैसा आ रहा है? That is 5 square plus 4 square minus that is the 3 square. मतलब alternatively we are taking 5 and 4, 3 and 2. 3 square plus 2 square. Similarly, we can take in this way. For the next figure, it is also 8 square plus 4 square minus, which is coming out to be 28. इसको अगर x है, तो 8 square plus x square, which should be equal to the 12. तो उसके ऊपर जो भी आंसर आएगा, that will come out to be your, that is the 2 as the answer. If you find out. If you find out, it will get the 2 as the answer. ये 7 है, तो ये जो एक स्टार मार्क के ऊपर दे रखा है, that is star is the given over here. तो ये दे रखा है that is 7 to 16, 16 से 34. Okay. 7 से 16, 16 से 34, then question mark, then 142, then it is 286 it is given. तो हमें ये सीक्वेंस बनाना पड़ेगा, that is we have to make the sequence in that way. कि क्या सीक्वेंस आएगा इसका. तो इफ यू लुक एट द सीक्वेंस 7 to 16 आने के लिए दैट इज 7 into 2 plus 2 दैट इज 16. 16 से 34 आने के लिए एक्चुअली चाहे पजल्स हो, लेकिन द लॉजिक बिहाइंड इट इज द नंबर्स. द लॉजिक बिहाइंड इट इज द नंबर्स. तो 16 से 32 आने के लिए 16 into 2 plus 2 which is the 34. Okay? And 34 से then 4 into 2 plus 2. So that gives me 68, that is 70. So answer should be by the 70, that is the D option. तो आप लोग कुछ ट्राई कर सकते हो. इफ यू आर, that is you can try for the 4, 5 and 6 question. 4, 5 and 6 I am giving you some time to find out the things. Little bit the figures are तो ये क्या है, दैट इज एक मैट्रिक्स के फॉर्मेट दे रहा है. इट इज गिवन इन द, इट इज गिवन इन द मैट्रिक्स फॉर्मेट. ठीक है. तो मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे क्या होता है, कभी कभी दैट इज रो वाइज भी होता है, कभी कभी कॉलम वाइज भी होता है. तो दे हैव आस्क्ड यू द वेरी गुड क्वेश्चन इन द यूपीएससी, बोथ इन द केस ऑफ द रो वाइज एंड द कॉलम वाइज. तो आपको उस हिसाब से फर्स्ट ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस यू हैव टू इंक्रीज, whether it is has to be found out in the row wise or it has to be found out in the column wise. तो ये जो दे रखा है दैट इज कॉलम वाइज, अगर चेक करें 4, 2 and 1 दे रखा है 21. तो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इट कैन बी 21. मे बी लॉजिक डिफाई भी हो जाता है, दैट इज समटाइम्स द लॉजिक गेट्स डिफाइड एज वेल. तो नेक्स्ट पे चेक कर लेते हैं, दैट इज 5 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर विच इज गिव्स मी 98. So if this happens, so obviously that is the 6 square plus 7 square plus 3 square which gives me the 94. So 94 should be the answer to this one. Clear? Next question you can try. TV, next two question.
तो ये कितना हो जाएगा, दैट इज नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 7 और 5 पे 6 हो गया, तो 7 + 5 डिवाइड बाई 2 इज 6, 5 + 21 डिवाइड बाई 2 इज 13, 21 + 7 दैट इज 28 डिवाइडेड बाई 2 इज द 14। तो ये जब 3 का सीक्वेंस बनता है, जैसा 3 का चीज़ें दे दिया, तो फर्स्ट पे हम लोग लॉजिक बनाते हैं, सेकंड में दैट इज उस चीज़ को we verify with the help of the second, and third pay, that is we find out the after verifying we try to find out the answer. Okay. Next question, you try to find out, again it is given in the matrix format. Again it is given in the matrix format. तो matrix या तो row wise हो सकता है, या तो that is the column wise हो सकता है. That is given a 1 minute time. You can always find out the things. Sixth question. तो ये हो गया कितना, दैट इज इफ वी फाइंड आउट इन द कॉलम वाइज 15 + 13 प्लस 15 13 8 और 20 दे रखा है, तो हम लोग इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं 15 + 13 28 - 8 इट इज 20। तो देखते हैं इस लॉजिक फिट होता है कि नहीं। 6 + 3 - 2 इट इज 7, द लॉजिक इज देयर। तो ओवर हियर इट विल बी 13 आ रहा है, तो 5 + 9 14 - 1 that gives me 13, so the answer should be the 1। तो जब भी हमारे पास मैट्रिक्स के फॉर्मेट पे होता है, whenever it comes out into the matrix form, we have to be careful with the case कि it is column wise होगा कि it will be in the form of the row wise। okay, so we have done most of the now in these 2 days we have covered most of the logic behind logic, whatever is the required in the UPSC। what you can do, that is always you can revise the part। you have very short time left also, तो लेकिन हर दिन रिवीजन बहुत इम्पोर्टेंट है। नंबर ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व करना इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट अब नहीं रह जाएगा, क्योंकि जो सॉल्व हो चुका है हो चुका है। अब हर बार बार उसी कॉन्सेप्ट को, दैट इज एवरी टाइम वी शुड रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट, ताकि जब भी उस तरह का कोई क्वेश्चन आए, कोई भी इस तरह का क्वेश्चन आए, वो हम लोगों को कॉन्सेप्ट वाइज, मतलब हमें ये देखना होगा कि वो क्लिक कर जाना चाहिए। और अगर जितना भी अगर प्रैक्टिस ही करना है, दैट इज आई ऑलवेज प्रेफर कि इस दौरान जितना टाइम है 8-10 दिन में जितना भी हो पाएगा, तो यू शुड ऑलवेज रिवाइज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो देयर आर लॉट ऑफ अदर क्वेश्चंस आर आल्सो देयर, बट अभी इतना नया नया क्वेश्चन सॉल्व करने का टाइम नहीं होता है। आप लोगों की प्रिपरेशन इस तरह से होनी चाहिए कि जो भी अच्छा मेन टॉपिक हमेशा आप सॉल्व करके मतलब एक बार अच्छे से रिवाइज करके जाना। जैसा अरिथमेटिक के बात करें, तो अरिथमेटिक पे मतलब टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, है ना। और टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस बहुत that is a bigger topic। time speed and distance is not only limited to that, time speed and distance is also connecting to the linear and the circular races। if you see linear and circular races से clock से भी they have asked you the very good question, so you should also revise the clocks part। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग छोटे छोटे इसको पार्ट को छोड़ देते हैं। calendars also, that is calendar is a simple topic, you should always follow the calendar topic as well। तो ये नहीं कि टॉपिक सिंपल है तो हम लोग छोड़ के चले जाएंगे, नहीं। जो भी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के रिलेटेड और ये सारा टॉपिक आपको करके जाना है। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया। टाइम एंड वर्क डेफिनेटली यू शुड डू।
विद द हेल्प ऑफ द एलसीएम मेथड हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है क्लासेस पे। तो एलसीएम मेथड पे भी आप टाइम एंड वर्क सॉल्व करना, और बाकी अगर देखा जाए तो इधर हो गया परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस। तो ये टॉपिक हो गया हमारा अरिथमेटिक पे। अच्छा, द आइडिया इसकी अलजेब्रा की बात करें तो अलजेब्रा पे हमारा दैट इज द सेट थ्योरी देखना चाहिए, क्योंकि ऑलमोस्ट एवरी ईयर दे आस्क यू वन क्वेश्चन। मैंने तो ऑलमोस्ट देखा हुआ, दे आस्क यू वन क्वेश्चन और सिंपल होता है। टॉपिक्स कोई भी छोड़ के मत जाना। लास्ट जितना टाइम है, वट एवर इज द टाइम लेफ्ट, यू शुड ऑलवेज कीप ऑन रिवाइजिंग द टॉपिक, तो यू शुड नॉट लीव एनी ऑफ द टॉपिक। और अगर पीएनसी बहुत अच्छे से इफ यू दैट इज द रिवाइज, तो नंबर सिस्टम का जो पार्ट है, नंबर सिस्टम तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नंबर सिस्टम और पीएनसी दैट इज साइमल्टेनियसली यू शुड सॉल्व द थिंग्स, मतलब क्लब कर करके। एचसीएफ एलसीएम का भी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, not how to find out HCF LCM, but when to apply the HCF LCM concept, when to, what is the exact meaning of the LCM and what is the exact meaning of the HCF. These things you should be very careful. So revise as far as possible the few days you are left with.